कि हमें 140 करोड़ लोगों का पेट भरना है। यूएस टैरिफ की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा था वो अराउंड 50% आ रहा था। डीलर के पास जो कॉम्पेंसेशन सेस की क्रेडिट है वो क्या करेगा? कॉम्पेंसेशन सेस तो खत्म। हम हमेशा दूसरों की जंग नहीं लड़ सकते। तो वो घबरा रहा है, बोला जो क्रेडिट मेरे पास खड़ी हुई है मैं इसका क्या करूंगा? आप कंज्यूमर हैं, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली, हाँ। अब तक आप रुपए देते थे, 22 सितंबर के बाद ये पे हो जाएगा, तो आपको रुपए की बेनिफिट मिलेगी, कुछ ज्यादा मिलेगी या कुछ कम मिलेगी? क्या है आपका टेक? हमारे पापा बताते थे ये ब्रेड एंड बिस्किट जितनी ब्रिटिश कंपनी थी क्या करती थी, मार्केट में आती थी और चाय के साथ बिस्किट फ्री में देती थी। बिस्किट फ्री होते थे, क्यों अच्छा। होते थे मालूम है? कंज्यूमर को बेनिफिट मिलनी चाहिए, अदरवाइज मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने कंज्यूमर को ये बेनिफिट पास ऑन की है? किसी भी कंट्री के ग्रोथ को उसका टैक्स स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जितने प्रोग्रेसिव और सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर आपके कंट्री में होंगे उतने ही आपकी कंज्यूमरिज्म बढ़ेगी और उतना ही सिंप्लीफाइड वे में आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इंडिया ने रिसेंट 10 इयर्स में अपने टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत प्रोग्रेसिव किया है। जीएसटी से हमारे टैक्सेस में बहुत सिंप्लीफिकेशन हुआ है, जिससे आज लोगों को टैक्स समझने और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ईजी हुई है। बिजनेसेस आज बहुत इजीली फंक्शन कर रहे हैं बिकॉज जीएसटी हैज प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन सिंप्लीफाइंग टैक्सेस फॉर अ लेमैन। 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 इंडिया में लागू होने वाला है। इस टैक्स स्ट्रक्चर में टैक्सेस घटने वाले हैं and a lot of people are inquisitive about what this tax structure brings for them. Businesses के supply chains में tax structures बहुत कुछ change करने वाला है and ये confusion clear करने के लिए आज मैं और आप सब शायद कोई ना कोई ऐसे इंसान से बात करना चाहेंगे जो जीएसटी को और सिंप्लीफाई कर सके। बिमल जैन सर is one of the GST veterans. He's actually studied GST in depth. Bimal Jain sir has worked initially with the government in drafting GST. He's one of the educators and commentators on GST, and he is still working towards improving the GST structure for our country. आज उनका कीमती वक्त हमने build from scratch में लिया है, and he will clear out every little aspect of GST that exists in our mind. I will not take any more of your time. Let's get right into it. Build from scratch with Bimal Jain sir right here. Let's go. Hi Bimal sir. Thank you for giving us your precious time today. My pleasure, Nitan. So GST 2.0. That's what we're talking about today, and everyone is. What are your thoughts on that? GST 2.0 is the next generation GST reform. You know, Nitan, GST came from July 2017. So this is the biggest next generation reform announced by Honorable Prime Minister on this Independence Day. Okay. And now GST Council, 56 GST Council meeting, they have made recommendation how this next generation reform will come. Important one in GST 2.0 is rate rationalization. You know, there are rate like 5%, 12%, 18%, 28% with cess, compensation cess. What is compensation cess? See, compensation cess was levied just to compensate the state who are going to lose their revenue because of GST implementation. Achha. That was since July 2017. Okay. So this compensation cess was leviable only on specified goods, luxury and thin goods, when you are falling under 28% GST slab. Achha. So what is being done in GST 2.0 is, now there would be only two-tier rate, 5% and 18%. So resultant outcome is 12% gone, 28% plus compensation cess gone. Now there would be all your essential item, needy item, either will go to nil rate or under 5% rate. So all mass item which is required by common man, Aam Aadmi, will be nil rate or 5% rate. And all the item falling under 12% slab has gone to 5%, as I said. And 28% slab has come down to 18% slab. Look at consumer durables. You need color television beyond 32 inches. You need air conditioner. You need dishwashers machine. You need cement housing for all. All have moved to 18% GST rate. Now,
28% slab is gone. There's a special 40% slab is being made. That is for sin and luxury goods. What is sin goods? Tobacco. अच्छा, What is luxury? Your car and other stuff. And you got your beverages, Coke, Pepsi, 40%, and no compensation cess. So this is the biggest generation 2.0 reform. it is weird to have something like a Coke and Pepsi in this sin good wala section because it's a very basic consumption thing. Though it is sugar, but having that, is it something to do with the US? No, it's not something to do with the US. The American companies. No, rest assured. See, today, these beverages, whatever we are drinking, look at, you are not getting any, nutrition out of it. It's all Acha. sugar, caffeinated, but instead you go for that coconut water. So just make the comparison. Yes, we are liking this Coke and Pepsi, but it has got nothing to do with the US. And this is going to fall under 40% tariff rate. 40%. No compensation cess. Compensation cess gone. It will not be there. It is applicable only for pan masala, gutka, unmanufactured tobacco and jarda. And that too for a time being because the state has taken a loan from the central and they need to pay back this loan with the interest. And once it is being paid back, this compensation cess will go forever. Okay. And what was this loan about? जो ये पे बैक करने की बात कर रहे हैं. लोन ये था नितान के जब जीएसटी आया और जीएसटी में किसी स्टेट को लॉस हुआ सेंट्रल ने प्रॉमिस किया था कि हम 14% पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देंगे आपको बट अच्छा. किसी रीजन से अगर उनको 14% की ग्रोथ नहीं मिली तो उन्हें कॉम्पेंसेशन सेस लगा दिया लेकिन उसका कलेक्शन उतना होता ही नहीं था. अच्छा. जब कलेक्शन नहीं होता था तो इन्हें एक लोन का मैकेनिज्म डेवलप किया. उस लोन के जरिए उन स्टेट को लोन दिया जिन स्टेट में रेवेन्यू लॉस था. अच्छा. कॉम्पेंसेशन सेस को अभी भी ये चालू रखे हुए थे. अब ये खत्म हो जाएगा 22 सितंबर 2025 से. सो ये थ्योरी थी इसके पीछे, इसलिए लोन दिया गया था. और लोन देने का पर्पज ये था कि फॉर द टाइम बिंग अगर आपकी फाइनेंशियल नीड है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर लो और उसके बाद देन कॉम्पेंसेशन सेस नहीं रहेगा. इनिशियल 5 years के लिए प्रॉमिस किया गया था 5 साल के लिए 14% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर. उसके बाद कॉम्पेंसेशन सेस का मतलब ही नहीं रहता. राइट. सो इट इज सेफ टू से कि बहुत चेंजेस आने वाले हैं इस जीएसटी से. बहुत चेंजेस आने वाले हैं बट सिंप्लीफिकेशन की ओर, स्टेबिलिटी की ओर. जीएसटी की जो रियल मीनिंग है ना गुड एंड सिंपल टैक्स, इसके लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है, हार्डली वर्क कर रही है. और जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंडिपेंडेंस डे पे, उन्होंने कहा मैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाना चाहता हूँ, तो नितान उन्होंने सबसे पहले ये कहा था मैं आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता हूँ. मीनिंग देयर बाय सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी वोकल फॉर लोकल. हम लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाएं, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाएं. तो ऑब्जेक्टिव बड़ा यूनिक था, इसीलिए इसको हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 रिफॉर्म कह रहे हैं. राइट. जब ये जीएसटी आया था एंड आई रिमेम्बर वी हैड अ ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर जो जीएसटी से पहले था, उसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी ये आम आदमी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है समझना. जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए पहले प्री जीएसटी में नितान समझने की कोशिश कीजिए. मल्टीपल टैक्सेस होते थे. जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विसेज देते थे तो सर्विस टैक्स लगता था, लोकल मार्केट में कोई माल खरीदते तो वैट लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था. आप सोचो 21 टैक्सेस आपके जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मल्टीप्लिसिटी जीएसटी में खत्म हो गई. अब जीएसटी में आप कुछ भी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे सर्विस दो, चाहे ट्रेडिंग करो, और चाहे वो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाओ, चाहे रेस्टोरेंट में डाइनिंग करने के लिए जाओ, आपका जीएसटी लगेगा. तो मल्टीप्लिसिटी खत्म हो गई. राइट. दूसरा एडवांटेज हुआ कैस्केडिंग का. टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं हम उसको. Okay. तो एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं कि आप सेंट्रल एक्साइज चार्ज करते हो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन जो वैट डीलर होता था जो सिर्फ ट्रेडिंग करता है उसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट नहीं मिलती थी. तो वो क्या करता था, अपनी प्राइसिंग के साथ जोड़ देता था. इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ. मान लीजिए आप सर्विस प्रोवाइडर थे, आपने एक लैपटॉप खरीदा, आपने वैट पे किया होगा, सर्विस प्रोवाइडर को वैट की क्रेडिट नहीं मिलती थी. अब सर्विस प्रोवाइडर सर्विस टैक्स चार्ज करता था वैट डीलर को, तो वैट डीलर को सर्विस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती थी. तो ऐसे कई टैक्सेस थे हमारे सप्लाई चेन में जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी, तो टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था. जीएसटी ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया. तीसरा एडवांटेज हुआ डबल टैक्सेशन का.
आप कभी प्री जीएसटी में रेस्टोरेंट में गए हो? गया हूँ बट बिल्स नहीं पे किया है। बिल्स पे नहीं किए? आपने डेटिंग की कि नहीं की? हाँ, डेटिंग की कि नहीं की? किसी लड़की को लेके गए या नहीं गए? लेके गया हूँ बट आई डोंट थिंक। मैकडोनाल्ड में बर्गर नहीं खाया? मैकडोनाल्ड में बर्गर नहीं खाया? खाए थे सी रेस्टोरेंट पे क्या होता था नितान कि 40%, मान लो आपने 100 रुपए का कोई आइटम खरीदा रेस्टोरेंट में, तो 40% पे सर्विस टैक्स लग जाता था और टोटल 100 रुपए पे वैट लग जाता था, यानी डबल टैक्स हो रहा था। जीएसटी ने इसको खत्म कर दिया। जीएसटी ने कहा नहीं, डबल टैक्स नहीं होगा। अब कई लोग इसे कंफ्यूज कर जाते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी डबल ही तो है। डबल नहीं है, रेट को डिवाइड कर दिया गया। अगर मान लो 18% लीविएबल है तो 9% सेंट्रल जीएसटी, 9% स्टेट जीएसटी। तो यानी जो रेस्टोरेंट में पहले आप सर्विस टैक्स भी देते थे, वैट भी देते थे, खत्म हो गया। और सबसे बड़ा एडवांटेज नितांत ये रहा, वन नेशन वन लॉ वन टैक्स वन मार्केट, यानी कॉमनली एप्लीकेबल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। आज आप सोचो, पहले वैट के प्रोविजन हम एनसीआर को ही उठा लेते हैं, ठीक है। दिल्ली के वैट हरियाणा में एप्लीकेबल नहीं थे। गुड़गांव कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। गुड़गांव में हरियाणा वैट लगता है, नोएडा में एप्लीकेबल नहीं था, वहाँ यूपी वैट लगता है। जो नोएडा में लगता था वो जयपुर में नहीं लगता, वहाँ राजस्थान वैट और हम सब विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया डिवाइडेड थे। हमारे स्टेट के बैरियर बने हुए थे। बट अब जीएसटी ने क्या कर दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जीएसटी लॉ, कॉमन लॉ एप्लीकेबल हो गया। यानी आप चाहे दिल्ली में हो, केरला में हो, आंध्र प्रदेश में हो, चेन्नई में हो, कलकत्ता में बंगाली वाले दादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जीएसटी लॉ दिल्ली में एप्लीकेबल है वो पैन इंडिया एप्लीकेबल है। तो जीएसटी ने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है, बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, सिंप्लीफिकेशन कर दी चीजों की। आप जीएसटी में मान लो नहीं हो, लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिए, मल्टीप्लिसिटी खत्म हो गई, डबल टैक्स खत्म हो गया, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स खत्म हो गया, और वन लॉ वन टैक्स वन मार्केट जो मैंने आपको बताया, अब आपके लिए कितना सिंपल हो गया। मान लो आप जिस इंडस्ट्री में हो, आज आप जीएसटी लॉ समझना चाहते हो, पहले तो आपके लिए बड़ा दिक्कत होता था कि केरला में वैट का रेट क्या है, कर्नाटका में क्या है, एपी में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, गुजरात में क्या है। आज तो दिल्ली में अगर आपको मालूम है कि क्या इस मेरे प्रोडक्ट पे रेट एप्लीकेबल है, इस एप्लीकेबल पैन इंडिया। कश्मीर में आपको कश्मीरी लैंग्वेज की जानने की जरूरत नहीं है। यू नो कि अगर जीएसटी लॉ में सेक्शन 9 चार्जेबल सेक्शन है, दैट इज एप्लीकेबल पैन इंडिया। दैट्स द एडवांटेज। राइट। आई हैव आल्सो रियलाइज्ड कि जैसे जैसे टैक्सेस चेंज हो रहे हैं इंडिया में, आई वाज लुकिंग अराउंड फॉर सम टैक्स लॉज अराउंड द वर्ल्ड and they seem to be even more simpler. जैसे दुबई में there is no income tax. Now for a young person like me, a no income tax seems very very lucrative, and say 5% I think service या goods tax apply होता है। इंडिया में ऐसी चीज करी जा सकती है, given कि I've also heard कि the data says that only 9% people 9% of the population pays income tax according to the data, या 9 से भी कम है if I'm not quoting it right। तो जब हम इनकम टैक्स जैसी चीज लगा के वो पूरी तरह इकट्ठा ही नहीं कर पाते, एंड 9% में से आई हर्ड कि 50% ऑफ द टैक्स इज अंडर नॉन टैक्सेबल अमाउंट, तो फिर इनकम टैक्स का पॉइंट क्या बन रहा है? नितांत, ये समझना पड़ेगा, हम लोग 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, राइट। आपको मालूम है कितने लोग इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं? अराउंड 8.5 करोड़ हैं जो इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं। आपको मालूम है इसमें कितने लोग टैक्स देते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग, पहले जब इनकम की एक थ्रेशोल्ड होती है ना, जैसे अब इनकम की थ्रेशोल्ड 12 लाख रुपए कर दी गई कि 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो लोग कैसे आईटीआर भरते हैं मालूम है? इतने सारे ब्यूटिशियन आ जाएंगे, इतने सारे कोचिंग क्लासेस करने वाले आ जाएंगे, इतने सारे फोटोग्राफर आ जाएंगे, वो अपनी इनकम कितनी दिखाएंगे मालूम है? 12,10,000 रुपए, 12,05,000 रुपए। मतलब हम लोग जो देश हित में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए वो हमने, टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी 140 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और उसमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर 9% 10% होगा तो कलेक्शन कैसे होगा? और ये कलेक्शन किसके लिए? दिस कलेक्शन नीडेड फॉर द नेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको रोड बनानी है, एयरपोर्ट बनाने हैं,
रेलवे बनाने हैं, आपको शिपयार्ड बनाने हैं, आपको 2 टायर सिटी को टायर 1 सिटी पे लाना है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज को मेंटेन करना है। आज हम बरसात के मौसम में देख लीजिए, आप दिल्ली में है, आए दिन यहाँ पानी भर जाता है। हम कैपिटल में ऐसा तो नहीं देखना चाहते ना। तो ये होगा कैसे? इसका पैसा आएगा कहाँ से? इसका पैसा यहीं से आएगा। तो इसमें हम सबको अपनी भागीदारी निभानी है, लेकिन हम सब आगे ही नहीं आते। अब आपने यूएई से अपना कंपैरिजन कर लिया कि यूएई में तो कोई टैक्स ही नहीं है। यूएई पेट्रोल रिच, ऑयल रिच कंपनी है, आज तक वहां पे टैक्स नहीं था। उनने कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया, उनने यूएई वैट लगा दिया। क्यों लगा दिया? अब तो ऑयल रिच कंपनी थे, आपके पास ऑयल रिच कंट्री है, आप इतने ऑयल आपके पास है, आपको लगाने की जरूरत कहाँ पड़ी? पैसा आज की डेट में एक ऐसी नीड है जो आपको ग्रोथ के लिए बहुत जरूरत है। आज हम एक फैक्टर में आपको बताना चाहूंगा नितान, वी आर फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारा जीडीपी 6.5% से ग्रो कर रहा है। कंपेयरिंग अदर कंट्रीज लाइक यूएस जहाँ पे 1.8% है, चाइना 4.5% है, और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यूके ने हम पे शासन किया, राइट। हमने 75 ईयर्स में उनको पछाड़ दिया। दे वेयर 5th पोजीशन, उनको हम सरपास करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, राइट। वी आर मूविंग टुवर्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आज हम $4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी है। व्हाट इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टारगेट? इट इज फॉर अमृतकाल। जब हमारे 100 साल हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो हमने टारगेट लिया है कि हम पहली मीन्स हम वर्ल्ड वाइड हमारी पहली पोजीशनिंग होगी जो जीडीपी में ग्रो कर रही होगी। आज कोई भी कंट्री हमारे नियरर नहीं है। यूएस जिसको हम इतना एडवांस मानते हैं 1.8%, और मैं कितने पे ग्रो कर रहा हूँ? 6.5%। चाइना जिसको हम कंपेयर, अब आप यूएई और उससे कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन प्रॉपर्ली ड्रॉ। हमारी 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है इस यंग, और इसमें मालूम है आपकी 60% यंग जनरेशन है, राइट। यानी जो जितने भी यंग जनरेशन है उनको हमें कैटर करना पड़ेगा, उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, उनके एजुकेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप सिर्फ सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी देख के चीजें मत देखिए, आपको जाना पड़ेगा उन गाँव में जहाँ पे कभी लाइट नहीं होती थी, उन गाँव में जहाँ सड़क नहीं होती थी, वहां पे सारी चीजें आप अफोर्ड कराओगे, जिससे क्या होगा, वहां की जो पॉपुलेशन है वो सिटी में नहीं आके वहीं पढ़े, वहीं आगे बढ़े, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है, उनका विजन बहुत क्लियर है, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। हमें अपने भारत को आगे लेके जाना है, राइट। I truly admire the Prime Minister's aim that जो हम लेके चल रहे हैं is to make the country number 1 of course, and हमारे 100 साल जब हम पूरे करें तो हम यही टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम नंबर 1 बन सके। I have also realized, but a lot of people जो आप बात कर रहे हैं यंग जनरेशन की, like 60% of the people, lot of people around are not willing to stay in India. They want to move out, particularly because they're not happy with the tax structure. Even after a 12 lakh जो आपने slab बना दिया, उसके बावजूद भी it is always very lucrative to move to this first world countries where it is believed that जो मैं tax pay कर रहा हूँ उससे मुझे एक डेवलपमेंट दिख भी रही है, जो आज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल अर्बन सिटीज़ में भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये दिखना कब चालू होगा? ये कैसे चालू होगा? नितान, बस चश्मा बदलने की जरूरत है। हम चश्मा नहीं बदल रहे। अगर मैं इनकम टैक्स स्लैब से अपनी अपॉर्चुनिटी को अगर कंपैरिजन करने लगा तो शायद मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। आज यंग जनरेशन से मैं कहना चाहता हूँ, और मैं भी यंग जनरेशन से ही ऊपर उठ के आगे आया हूँ, तो मैंने क्या देखा है आज की डेट में कि अगर आप सिर्फ 12 लाख की लिमिट से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं, टैक्स लिमिट से अपनी बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट वे। हाँ, आप भारत में काम करना चाहते हैं या भारत के बाहर काम करना चाहते हैं, ये आपकी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन आपका ये कहना कि भारत के बाहर अपॉर्चुनिटी है, अगर है तो वो 1.8% पे ग्रो क्यों कर रहे हैं? उनकी खुद की पॉपुलेशन को तो वो कैटर नहीं कर पा रहे। दूर बैठ के ना, दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं, कई बार यहाँ बैठ के ना आपको लगता है सब कुछ वहाँ ग्लूमी है, दूसरी जगह ड्रीमी ज्यादा लगती है। लेकिन नितांत मैं आपको सच बताऊं, मेरे यहाँ का जो दाल भात है ना उसमें बड़ा टेस्ट आता है, और वो खा के इतना मजा आता है ना, पेट पूरा भरता है और टेस्ट पूरा आता है। थोड़ा हमें देश के प्रति अपनी अपनी
इंटरेस्ट को जगाना पड़ेगा। Right. अपने इस चीज को मैं भी तो बाहर जा सकता हूँ। आज की डेट में मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं बाहर जाके कर सकता हूँ, पर मुझे मेरे देश से इतना प्यार है ना, मुझे पैसे नहीं। और बाहर जाके आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली, आज आप यूएस की बात कर लो, यूएस में आपको लगेगा $10,000 आपको मिल गए, पर $10,000 के हिसाब से जब आप खर्चा निकालोगे तो मालूम पड़ रहा है आप फैमिली से पैसे मंगा रहे हो। यहाँ आप दिल्ली में रह के ना 15,000 रुपए में खाना पीना रहना और कुछ पैसे बचा भी लोगे। लेकिन कंपैरिजन कई बार हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। सो यंग जनरेशन कभी ये सोचती है कि नहीं बाहर में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो मैं फिर यंग जनरेशन से एक ही बात कहना चाहूँगा कि पहले देखो कि हम देश के लिए, इस देश में हमने जन्म लिया है, इस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ इनकम कैन नॉट बी ए क्राइटेरिया। मेरे फादर एंड मदर जिनने मुझे जन्म दिया, क्या मैं किसी भी तरीके से अपने फादर एंड मदर को ये मान सकता हूँ कि मेरे प्रति, मेरे लिए उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? हाँ, मुझे ग्लूमी दिख रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छे में अगर मैं सबको साथ लेके चलूं तभी रियल मीनिंग निकल के आती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। यस, तो थोड़ा कॉन्वर्सेशन को एक स्विच देंगे टुवर्ड्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन. अब वी आर सीइंग एआई हैज टेकन ओवर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स एंड फील्ड्स. चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इसका क्या इफेक्ट आ रहा है? व्हाट इज योर सजेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की और आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस फील्ड में? नितांत, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पिक कर लिया, क्यों पिक किया मुझे नहीं मालूम, पर एक क्वेश्चन हर किसी के लिए कॉमन हो गया है। Okay. आज एआई जो आ गया है, किसी भी सेक्टर को आप पिक कर लीजिए, एआई इज प्लेइंग वेरी इवॉल्विंग रोल, Right. एंड इवॉल्विंग रोल रिक्वायर्ड प्रॉपर काइंड ऑफ कंट्रोल एंड मैनेज, और उसको यूज करने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। Right. इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। Right. अगर मुझे नहीं मालूम है तो वो खराब भी कर सकता है। Right. तो एआई को कितना यूज करना है और एआई क्या आज कर रहा है। एआई आज की डेट में जितने कॉम्प्लायंसेस वर्क होते थे, जो आप रेगुलर रिटर्न भर रहे हैं, रेगुलर कॉम्प्लायंसेस कर रहे हैं, उसको तो थोड़ा ईज और सिंप्लीफाई कर दे रहा है। लेकिन जहाँ इंटेलेक्चुअल की बात आएगी, अब आप बताओ, जब मैं हाई कोर्ट में केस करने जाऊंगा, क्या एआई मुझे हाई कोर्ट के लिए तैयार कर सकता है? क्या एआई मुझे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुझे क्या आर्गुमेंट लेने हैं मुझे तैयार कर सकता है? किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करना हमारा टेक है, Right. हम कर लेते हैं, एआई इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। डॉक्टर जो वहां पे बैठ के सर्जरी कर रहा होता है, एआई के जरिए आप मैकेनिकली चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी इंटेलेक्चुअल पावर है, ह्यूमन इंटेलेक्ट, इस एआई को बनाने वाले भी हम हैं, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल है। तो हम कभी ये मानने लगे कि एआई ह्यूमन इंटेलेक्चुअल को सरपास कर जाएगा, जिस दिन ऐसा हुआ वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एआई अच्छा है, हर चीज जो हमें ऐड करती है, हर चीज जो हमें सपोर्ट करती है सही है, लेकिन हर वो चीज जो हमें रिडंडेंट बना देती है वो चीज सही नहीं है। तो हमें हर चीज को यूज करना है, आगे बढ़ना है और बड़े मैनेजेबल वे से आगे बढ़ना है। एआई हमारे कई चीजों को सिंप्लीफाई कर रही है आज की डेट में, मैं मना नहीं कर रहा। इवन मेरे प्रैक्टिस में भी अगर आप देखोगे, आई यूज लॉट ऑफ एआई, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल की बात आती है, जब मुझे किसी केस को लड़ना है, फाइट करना है, मुझे लिटिगेशन में जाना है, मुझे एडवाइजरी देनी है, और एआई आज की डेट में आपको मिसगाइड भी कर रहा है। आप चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डाल देना कि इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और कई हमारे पास एआई के वर्जन है, एक ही क्वेश्चन के आपको 3 आंसर मिलेंगे। फिर आप सिर पकड़ लोगे, ये क्या है, इसका आंसर क्या है, फिर आपको बिमल जैन याद आएगा, फिर लगेगा अब तो बिमल भैया के पास ही जाना पड़ेगा और बिमल जी से ही पूछना पड़ेगा। तो मैं आने वाले टाइम में ये मानता हूँ कि हाँ, एआई आपको एक रास्ता जरूर दिखाएगा, लेकिन रास्ता अगर समझ में नहीं आता, गूगल मैप है ना, कई बार दिखाता है यहाँ से बड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, घुस जाओ, वो ऐसी छोटी गली में ले जाके आपको खड़ा कर देगा, ना आगे जा पाओगे ना पीछे। आपको मालूम होना चाहिए गूगल मैप चलाना कैसे है। अगर आपको गूगल मैप चलाना नहीं आता तो जस्ट मैं ये कहना चालू कर दूं, गूगल मैप से सारी चीज ईज हो जा रही है। हाँ, कुछ एक्सटेंट तक होती है, बट आपको अगर चलाना आता है तो आप उसको यूज कर लेंगे, लेकिन चलाना नहीं आता तो वो आपको उस गली में ऐसी जगह खड़ा कर देगी, ना आगे बनेगा ना पीछे बनेगा। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। द एआई इज समथिंग दैट हैज टू बी अंडर आवर कंट्रोल, हमारे वश में होना चाहिए, एंड
हमें यूज़ करना आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। GST 2.0 is coming out on September 22nd. I think it will be officially in the system. उसके पहले I'm seeing a lot of buzz around the news. A lot of traders are very confused with their invoicing, with their stocking. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? How will the input credit system work during these changes? जी नितांत, इसमें ना कई चीजें हैं, मैं स्लो पेस पे बताता हूँ हाँ, जैसे लोगों को समझ में भी आए। आज मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, ओके, आपने कोई आइटम 18% चार्ज किया था और सप्लाई चेन में आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, रिटेलर है, उनने उसकी क्रेडिट ले ली। अब मान लीजिए वो 18% का प्रोडक्ट 5% हो गया या 12% का प्रोडक्ट 5% हो गया। कई प्रोडक्ट ऐसे भी आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि 12 को ही 5 बनाया गया है। राइट। कई ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो 18 से 5 पे आ गए हैं या 18 से 0 पे आ गए हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती थी, राइट, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती थी, 18% का GST था जो निल हो गया। तो पहले मैं सबको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ 12% का स्लैब खत्म हो गया, 28% का स्लैब खत्म हो गया। अब 18 वाले आइटम भी कुछ ऐसे हैं जो निल पे चले गए या 5 पे चले गए हैं। ओके, तो फिर हम उसी अपने क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन में वापस लौटते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर हैं उनने क्रेडिट ले रखी है। अब 22 सितंबर से मान लीजिए आपके प्रोडक्ट के रेट 5% हो गए, उसने 18% पे आपसे बाई कर रखा है, तो अब वो 22 सितंबर के बाद 5 पे बेचेगा, राइट, तो उसके पास तो क्रेडिट 18 की पड़ी हुई है। यस, अब 5 पे बेचेगा तो उसके पास तो एक्यूमुलेशन हो गया। वो क्या करेगा? तो वो घबरा रहा है, बोला जो क्रेडिट मेरे पास खड़ी हुई है मैं इसका क्या करूंगा। हाँ, अब मैं गाड़ी का एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आज गाड़ी 28% प्लस कॉम्पेंसेशन सेस लगता था। जो स्मॉल कार होती थी उनको 18% पे ले गए, कॉम्पेंसेशन सेस नहीं लगेगा। स्मॉल कार की डेफिनेशन जो पेट्रोल कार है वो 1200 सीसी होता है, डीजल 1500 सीसी होता है, 4 मीटर की लेंथ होती है। इनके रेट 18% हो गए। तो यानी जितने भी कार डीलर थे उनने 28% और कॉम्पेंसेशन सेस की क्रेडिट ले रखी थी, राइट। आप 18 पे ले गए। और जो बिग कार हैं, जितनी लग्जरी बड़ी कार है जिसको हम SUV और सेडान वगैरह बोलते हैं, जिस पे ऑलमोस्ट 28% प्लस कॉम्पेंसेशन सेस लगता था, तो आज की डेट में फिर 50% का GST लगता है, जिसको अब वो 40% स्लैब पे ले आए हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि बड़ी गाड़ियों के कार महंगी हो जाएंगी 22 सितंबर के बाद। तो मैं लोगों को बता दूं कि 22 सितंबर के बाद बड़ी गाड़ियों के दाम भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आज वो 50% के आसपास GST पे करते हैं इंक्लूडिंग कॉम्पेंसेशन सेस, जो 40% होगा। स्मॉल कार 18 हो गया। अब डीलर के पास जो कॉम्पेंसेशन सेस की क्रेडिट है वो क्या करेगा? राइट, कॉम्पेंसेशन सेस तो खत्म। खत्म। तो उनको दिक्कत आ रही है। तीसरी दिक्कत ये आ रही है OEM को कि जब गवर्नमेंट का इंटेंशन ये रेट रैशनलाइजेशन का क्या है कि कंज्यूमर को बेनिफिट मिलनी चाहिए। करेक्ट, राइट, करेक्ट। यानी जो पहले 12% देता था वो अब 5% देगा, तो 7% आपको कंज्यूमर को बेनिफिट देनी है। तो जितना माल सप्लाई चेन में पड़ा हुआ है स्टॉक में, इन्वेंट्री में, उस सारी इन्वेंट्री की MRP आपको कम करनी पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए कोई MRP आपने 12% पे निकाला था, आज अगर वो 5% पे हो गया तो सारी MRP आपको बदलनी पड़ेगी। राइट। अदरवाइज मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने कंज्यूमर को 7% की बेनिफिट पास ऑन की है? तो ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लाई चेन में आ रहे हैं। राइट। अब इसके आंसर बड़े डिफरेंट है। अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल प्लीज, बिकॉज वी वांट टू बी मोर क्लियर अबाउट दिस। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कंज्यूमर को बेनिफिट देना है, अच्छा, ये एम है और इसी वजह से रेट को रैशनलाइज किया गया है। यानी कंज्यूमर को अगर 7% की बेनिफिट 12 से 5 या 18 से 5 कर देते हैं तो जो 13% की रिडक्शन है वो देनी है। तो वो जो देनी है तो आपको अपनी प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उस पे अपनी प्राइसेस रीफिक्स करनी पड़ेंगी। अब एक प्रोविजन होता था GST में एंटी प्रॉफिटेरिंग का कि आप रेट रिडक्शन की बेनिफिट खुद नहीं खा लोगे, इसको हम प्रॉफिटेरिंग बोलते हैं। आप ऐसा नहीं करोगे और कंज्यूमर को पास ऑन करोगे। तो एंटी प्रॉफिटेरिंग के प्रोविजन GST लॉ में खत्म हो गए हैं फ्रॉम अप्रैल 1, 2025। बट इससे ये नहीं समझना चाहिए कि आप उसका एडवांटेज ले लेंगे, ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? मैं उदाहरण देता हूं आपको। आप मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 12 से 5 हो गया,
ओके 7% पे रिडक्शन हुआ। अगर आप अपनी प्राइस कम नहीं करोगे तो आपका कंपटीशन तो कम करेगा, वो फिर माल बेच लेगा। राइट तो यानी आपको हर हाल में प्राइसिंग कम करनी है। राइट दूसरा प्रोविजन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर मुझे मालूम पड़ गया, मैं कंज्यूमर हूं, कि आपने प्राइस कम नहीं किए, मैं आपके अगेंस्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाके केस फाइल कर दूंगा। सेकंड सिनारियो। तीसरा सिनारियो, गवर्नमेंट ने भी इस बात को कहा है कि हम ट्रेड और इंडस्ट्री पे बहुत भरोसा करते हैं और अच्छा। ट्रेड एंड इंडस्ट्री कंज्यूमर को ये बेनिफिट पास ऑन करेगी। यही ऑब्जेक्टिव है ना। राइट ऑफ कोर्स अगर ये आपने पास ऑन नहीं किया तो आपको कोई वॉच कर रहा है, आपको कोई देख रहा है। आज देखिए गाड़ी की प्राइस आज भी मुझे मालूम है, मुझे मालूम है मेरी स्मॉल कार के रेट कम हो जाएंगे, तो मुझे आज के रेट भी मालूम है। और जब 22 सितंबर से रेट कम होंगे तो मैं कंपैरिजन करूंगा ना कि 28 से 18 की 10% की बेनिफिट मुझे मिली या नहीं मिली। तो अगर किसी को ये लगता हो कि मैं प्रॉफिटरिंग कर लूंगा, तो मुझे नहीं लगता। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये प्रॉफिटरिंग तो नहीं होगी और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि इस रेट को कम करके डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाया जाए, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाया जाए और कंजम्पशन बढ़ा के हमारी जीडीपी को आगे बूस्ट किया जाए। राइट सो सप्लाई चेन में क्रेडिट फ्लो के बारे में बात करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द एंटायर चेंज इन द जीएसटी नॉर्म्स, द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द एंटायर सप्लाई चेन थोड़ा कंफ्यूज होकर रखें कि व्हाट विल दे डू विद द एक्स्ट्रा क्रेडिट। उसका सिंपल आंसर नितांत ये है, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन्हें इशू किया था कि मान लीजिए आपने 12% पे या 18% पे परचेज किया एंड समहाउ रिड्यूस होके रेट 5% रह गया है, तो आपकी आईटीसी आपके पास होगी जो ज़्यादा होगी। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि अगर 5% का जीएसटी रेट हो गया तो जो क्रेडिट मेरे पास है वो लैप्स्ड हो जाएगी क्या? तो मैं आपको बताऊं नितान, लैप्स तो नहीं होगी, तो आप बेफिक्र रहिए, लैप्स नहीं होगी। अच्छा दूसरा आंसर दूं इसका, फिर उस क्रेडिट का आप करेंगे क्या? उस क्रेडिट को आप फ्यूचर में यूटिलाइज करते रहिए अपने आउटपुट टैक्स के साथ, जब तक कि आप उसे नॉक ऑफ ना कर लें। ठीक है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा, कोई टाइम लिमिटेशन है क्या? तो जीएसटी में ऐसा कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। जब तक आपका बिजनेस है आप उसे कैरी फॉरवर्ड करते रहिए और उसको यूटिलाइज करते रहिए। तो ये थोड़ा फॉर द टाइमिंग आपका वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि समहाउ गवर्नमेंट क्या क्लैरिफिकेशन लेके आती है, बट आपकी क्रेडिट लैप्स नहीं होगी एंड यू कैन यूटिलाइज द सेम। पहला आंसर जो मैंने दिया। दूसरा आंसर, कुछ क्रेडिट है जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, लाइक कॉम्पेंसेशन सेस जो कार डीलर के केस में है। कार डीलर ने जो कॉम्पेंसेशन सेस पे किया था, जिसकी क्रेडिट उनके पास है सप्लाई चेन में, 22 सितंबर के बाद कॉम्पेंसेशन सेस एप्लीकेबल नहीं है। और जीएसटी लॉ में एक प्रोविजन है नितान के कॉम्पेंसेशन सेस की क्रेडिट सिर्फ कॉम्पेंसेशन सेस की टैक्स के साथ एडजस्ट होती थी। करेक्ट। यानी आप उस कॉम्पेंसेशन सेस की क्रेडिट को जीएसटी लायबिलिटी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक निकल के आ रहा है कि जो सेस की क्रेडिट आपके पास पड़ी हुई है वो आपके लिए कंप्लीट लॉस हो जाएगा। राइट। तो इसके लिए अब दो चीजें मुझे समझ में आती हैं। एक तो आता है कि गवर्नमेंट इस चीज को देखे, कुछ वे फॉरवर्ड निकाले कि इसका क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट ने रेट रैशनलाइजेशन किया है और वो चाहते हैं कि हम रेट की बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करें, पर ये तो कॉस्ट हो गई ना सप्लाई चेन की। तो सब जब कॉस्ट होगी तो गवर्नमेंट को भी कुछ मैकेनिज्म लेके आना चाहिए जिससे सारी की सारी कॉस्ट सप्लाई चेन के ऊपर ना गिर पड़े। मेरा पहला सजेशन ये होगा। दूसरा सजेशन ये होगा कि इवन जो ओईएम है, मैन्युफैक्चरर है, वो भी ये देखे कि सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, जिसके पास इसकी क्रेडिट पड़ी हुई है और आगे वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो मे बी वो भी थोड़ा एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाए और उस क्रेडिट के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तैयार करें जिससे रेट को आपस में मिलके लोग डिवाइड कर पाए, क्योंकि सेस की क्रेडिट का आगे तो कुछ होना नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी डिस्कशन अभी चल रही है। होपफुली गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव ले रही है इस लाइन पे जो मैंने सुना है, एंड कुछ क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से भी आएंगे। बट एज ऑन डेट सेस की क्रेडिट 22 सितंबर के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। सेस एप्लीकेबल ही नहीं है। राइट।
तो वो आपकी कॉस्ट बनने वाली है। तो हमें वेट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट, या ओईएम जो मैन्युफैक्चरर हैं वो आगे बढ़ के आए और सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर को हेल्प करें, सपोर्ट करें। एक सिचुएशन ये हुई। और थर्ड सिचुएशन ये हुई जहाँ आईटीसी, कई बार आपका प्रोडक्ट एग्जिम्ट हो जाता है। राइट, जब एग्जिम्ट हो गया तब भी तो आपके पास क्रेडिट पड़ी हुई रहती है, बिल्कुल। तो उस क्रेडिट का आप क्या करोगे? अब तो एग्जिम्ट हो गया, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, यानी हमारे जीएसटी लॉ में ये प्रोविजन है कि अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस एग्जिम्ट हो गया, जिस पे निल रेट लग गया, और जो क्रेडिट आपके पास पड़ी हुई है फिर वो आपकी लैप्स्ड हो जाती है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका आउटवर्ड टैक्स तो निकलेगा नहीं। हाँ। तो जो क्रेडिट आपके पास पड़ी हुई है उसका कुछ नहीं हो सकता, वो कॉस्ट है आपके लिए। सो दैट इज, गवर्नमेंट उसमें अभी कुछ कर नहीं सकती। गवर्नमेंट आज की डेट में ना, हमारा रिफंड का जो प्रोविजन है जीएसटी में, वो सिर्फ जीरो रेटेड एक्सपोर्ट के लिए है, या अच्छा। सप्लाई टू एसईज यूनिट या डेवलपर के लिए है। अब इस तरह के सिनारियो में गवर्नमेंट ने आज तक कभी रिफंड नहीं दिया। तो ये मान के चलिए, मुझे नहीं लगता इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे आपका आउटपुट अगर निल रेटेड हो गया, एग्जिम्ट हो गया, तो जो भी क्रेडिट आपके पास पड़ी होगी वो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। अच्छा, सो दिस कम्स टू सप्लाई चेन में जो लास्ट वो स्टेक होल्डर होगा उस पे ही सारा जोड़ा कंज्यूमर में। जीएसटी इज अ बर्डन ऑन कंज्यूमर। बट 0% में नहीं आएगा, 0% में इट विल बी ऑन द सेलर। नहीं, आप ये समझने की कोशिश करो कि जो सप्लाई चेन में जो सेलर है, हाँ, एक अकेला सेलर ही इन चीजों को नहीं देखेगा ना। आप रिटेलर डीलर के पास जाएगा, Right, डीलर right. डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर ओईएम के पास जाएगा। Right. कोई ऐसे कह सकता है कि मैं नहीं देखूंगा तुझे, क्योंकि Right. हर किसी को सप्लाई चेन में Supply हाल chain सेल करना है। तो कुछ ना, उसमें ओईएम बड़ा प्लेयर होता है, मेन प्लेयर Main होता है। player तो ओईएम को कुछ कॉल लेने पड़ेंगे कि कितनी कॉस्टिंग मुझे पास ऑन करनी है। करनी है। एक जो फैक्टर जो आपने नहीं पूछा नितान, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अब एग्जिम्ट हो गई है, यानी 18% का जीएसटी नहीं लगेगा। Okay. तो अब तक तो आप मुझे इंटरव्यू कर रहे थे, अब मैं थोड़ा इंटरव्यू आपकी ओर डाइवर्ट करता हूँ। आप कंज्यूमर हैं, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली, हाँ, अब तक आप 118 रुपए देते थे, क्योंकि 100 रुपए और प्लस 18% का जीएसटी। राइट 22 सितंबर के बाद ये 100 रुपए हो जाएगा, राइट। राइट? तो आपको 18 रुपए की बेनिफिट मिलेगी। क्या आप श्योर है 18 रुपए की बेनिफिट मिलेगी, या कुछ ज्यादा मिलेगी, या कुछ कम मिलेगी? क्या है आपका टेक? एज अ कंज्यूमर मेरे माइंड में तो यही है कि मुझे वो 18 रुपए की बेनिफिट मिलेगी, जो मैं टैक्स पे कर रहा था 100 रुपए पे, अब वो मैं नहीं पे करूंगा ऑन माई हेल्थ इंश्योरेंस। तो इट सीम्स कि 18 रुपीज फॉर मी। तो निदान, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपसे किया था कि मैं चाह रहा था आप कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन मुझसे पूछो। राइट तो मैं अब आपको बताऊं, मान लीजिए मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, राइट जब मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता हूँ तो मैं 18% लगाता हूँ। राइट तो 100 रुपए पे मैंने 18% लगाया, और अब ये निल हो गया, Right. तो 100 रुपए की बिलिंग होगी। लेकिन आपको मालूम है इस इंश्योरेंस पॉलिसी में मेरे पास कई इनवर्ड सप्लाई भी होती है, रेंट होता है, कमीशन होता है, मार्केटिंग होती है, टेलीफोन होता है, जिसमें मैं जीएसटी पे करता हूँ। हाँ, of उसकी course. उसकी मैं क्रेडिट लेता हूँ, राइट? राइट उसी क्रेडिट से मैं 18% जो मेरी आउटपुट टैक्स बनती थी उसको पे करता था। राइट अब मैं आउटपुट पे कोई टैक्स लगाऊंगा नहीं, ऑफ कोर्स। तो ये जो क्रेडिट वाला जो पोर्शन था अब तो मुझे मिलेगा नहीं। हाँ तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि 50% आपका इनवर्ड सप्लाई था, हाँ जिस पे 18% आपने जीएसटी दिया हुआ था, जिसकी क्रेडिट पहले मिलती थी आपको 9 रुपए की। 50 पे 18% लगाएंगे, 9 रुपए की क्रेडिट मिलती थी। अगर आपका आउटवर्ड एग्जिम्ट हो गया तो 9 रुपए की क्रेडिट का क्या होगा? वो तो मैं एज अ कंज्यूमर बेयर करूंगा आगे। तो एज ए इंश्योरेंस कंपनी मैं क्या हाँ, करूंगा? insurance- मैं बोलूंगा ठीक है भैया, मैं कंज्यूमर को प्राइस की बेनिफिट देने को तैयार हूं, लेकिन जो 9 रुपए आईटीसी का लॉस हो रहा है वो मैं प्राइस में बिल्ड कर लूंगा। Right. तो आपकी इफेक्टिव प्राइसिंग 109 रुपए हो जाएगी, यानी आपको टोटल 18 रुपए का फायदा। नहीं तो ऐसी कई चीजें हैं जहां पे कंज्यूमर भी अपनी बेनिफिट को देख रहा होगा, राइट जो ओईएम है, सप्लाई चेन है, वो भी अपनी प्राइसिंग को ठीक कर रही होंगी, और गवर्नमेंट भी वॉच कर रही होगी कि हाँ कॉम्पेंसेटिंग बेनिफिट पास ऑन की या नहीं की। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये नहीं है कि जो इसकी आईटीसी कॉस्ट हो जा रही है वो भी यही बियर करेगा, ये बियर नहीं करेगा, ये तो अपनी प्राइसिंग में इसको ऐड कर लेगा, और कंज्यूमर को फायदा जरूर 9 रुपए 10 रुपए का हो जाएगा, Right. लेकिन पूरा 18 रुपए का फायदा नहीं नहीं होगा।
राइट इन केस ऑफ, स्पेशली इन केस ऑफ जहाँ पे जीएसटी इज गॉन टू निल। जहाँ पे जीएसटी निल हो गया, एग्जेम्प्टेड हो गया, वहां पे तो ये फैक्टर है। और प्लस आप सोचो ना, इसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए हेल्थ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एग्जेम्प्ट हो गई है तो उसकी आईटीसी भी तो खड़ी थी किसी दिन। राइट। उस आईटीसी का क्या होगा? तो यानी एक वो आईटीसी जो खड़ी है और एक आगे की आईटीसी जो कभी मिलने वाली नहीं है। राइट तो वो चीज है बिल्कुल। अब कुछ और कॉन्वर्सेशन पार्ट है जो मैं करना चाहूँगा। इन माई हेड ऑल दिस सीम्स फाइन, बट अभी भी आई फील दैट अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया, स्पेशली अगर आज मैं एक लेमैन हूँ और मुझे आज एक बिजनेस स्टार्ट करना है, देर आर स्टिल क्वेश्चंस दैट द इंडियन इकोनॉमी और द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ वेरी रेगुलराइज्ड इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी है जो भी एग्जिस्ट करता है, विच स्टॉप्स अ लेमैन टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू बी आत्मनिर्भर। तो डीरेगुलराइजेशन की नीड है अभी भी जीएसटी आने के बाद भी? इज इट दैट सिंप्लीफाइड? नितांत, आपका क्वेश्चन बाकी सही है। अगर आप ईज ऑफ बिजनेस की बात करेंगे तो हमारा वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छी पोजीशनिंग नहीं है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव लिए हैं ईज ऑफ बिजनेस के लिए। ओके। इस बार जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म 2.0, उसमें एक अनाउंसमेंट हुआ है जो लोगों ने कैच नहीं किया। सब रेट की बात कर रहे हैं। तो दो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो जीएसटी 2.0 में उन्होंने अनाउंस किया। एक अनाउंस उन्होंने किया जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं या जो स्टार्टअप होते हैं, राइट, जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, तो उनको थोड़ा लंबा टाइम लगने लगा था। ओके। अब उन्हें कह दिया उनको रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज में मिलेगा। 3 वर्किंग डेज में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इस बार रिकमेंडेशन हुई है, यानी जितने भी स्मॉल टैक्स पेयर होंगे, और स्मॉल टैक्स पेयर की उनने क्या डेफिनेशन निकाली, जिसका भी मंथली लायबिलिटी 2.5 लाख से कम होगी, 2.5 लाख से कम होगी, हम उसको स्मॉल टैक्स पेयर मान लेंगे और 3 वर्किंग डे में उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देंगे। अच्छा। यानी 96% लोग ऐसे होंगे जो स्मॉल टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ जाएंगे और 3 वर्किंग डेज में हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ओके। अब दूसरा मैं अनाउंसमेंट और बताऊं, एक कॉन्सेप्ट है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि मान लीजिए आपका इनपुट रॉ मटेरियल हाई रेट पे आ रहा है, राइट, लेस 18 पे आ रहा है, राइट, और आपका आउटपुट 5 पे जा रहा है, राइट, तो आपके पास 13% का एक्यूमुलेशन होता था, करेक्ट, जिसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड देते थे। करेक्ट। तो इसको इस बार इन्होंने सिंप्लीफाई भी करने की बहुत कोशिश की है। कई सेक्टर को इन्होंने पिक किया। लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, लाइक टेक्सटाइल, ओके, लाइक फार्मा, लाइक केमिकल, ओके, ये सारे सेक्टर ने पिक करके रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी के रेट कम कर दिए। यानी जो पहले 18 लगते थे, उन्हें कह दिया 5 लगेगा, तो यानी एक्यूमुलेशन होगा ही नहीं। राइट, पहले तो उन्होंने ये कोशिश की। दूसरी कोशिश उन्होंने ये की कि अगर किसी भी रीजन से आईडीएस रह गया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रह गया, तो अब वो 7 वर्किंग डेज में आपको 90% प्रोविजनल रिफंड देंगे। यानी जो एक्यूमुलेशन होता था उसका रिफंड मिलता है आईडीएस के अंदर, राइट। यानी वो 7 डेज में आपको रिफंड मिलेगा। प्रीवियसली कितने दिन का? प्रीवियसली बहुत जो हम बैकलॉग देख रहे थे, कई बार हमें 60 डेज हो गए, टाइम नहीं था, कई बार टाइम तो था लेकिन टाइमली मिलता नहीं था। ओके, सॉरी टू से, बट दिस इज ऑल जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव, ये सारी चीजें ट्रेड की जो थी, इंडस्ट्री की जो थी, दे हैव हर्ड ऑफ, तभी हमने इस रिकमेंडेशन को मान लिया। उन्होंने कहा 7 वर्किंग डेज में ये 90% का प्रोविजनल रिफंड देंगे। अब तीसरी कैटेगरी है जीरो रेटेड सप्लाई। आपके प्रोडक्ट बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया में भी सेल हो रही है और इंडिया के बाहर भी आप भेजते हो, तो कई बार आपके यहाँ जो रिफंड बनता है एक्सपोर्ट के ऊपर, वो रिफंड आपके पास टाइमली नहीं आता था। राइट। तो उन्होंने इस बार कह दिया है कि जो भी जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं उसको रिफंड हम 7 डेज में देंगे। 90% प्रोविजनल रिफंड 7 डेज में आ जाएगा आपके पास। ओके। तो अभी हम बात कर रहे थे रेगुलेशन वर्सेस डीरेगुलेशन की। हाँ, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे चीजें इंप्रूव हो रही हैं, इट्स इवॉल्विंग एंड डायनेमिक इन नेचर। गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ सजेशन मिल रहे हैं और जहाँ जहाँ वो रिस्क एनालिसिस भी करते हैं। देखिए, जहाँ डिले होती थी उसकी वजह भी होती थी, कई रिस्की टैक्स पेयर भी होते थे जो हमारे सप्लाई चेन में बैठे हुए हैं, और वो गवर्नमेंट का पैसा
टैक्स इवेजन करना, और वो जो रिफंड उनको नहीं मिलता है वो रिफंड ले लेते थे। तो वो सारी चीजें अब इम्प्रूव हो रही हैं। राइट तो इसीलिए उनने वो बैलेंस वे में चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनने कहा जो नॉन रिस्की टैक्स पेयर है, तुम 90% प्रोविजनल रिफंड विद इन 7 days ले लो। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीजों को समझना स्टार्ट किया। मैंने जीएसटी पर्सपेक्टिव में कहा है, बट ओवरऑल अगर आप कंपनी लॉ में देखें, इनकम टैक्स में देखें, फीमा में देखें या फैक्ट्रीज एक्ट में देखें, पहले की जो सिनारियोज थे वो सिनारियो इंप्रूव कर रहे हैं। Right. आपने जीएसटी में जनरेशन 2.0 रिफॉर्म देख लिया है। अब आने वाले टाइम में जो मुझे लगता है आप लैंड रिफॉर्म देखेंगे, राइट आप आने वाले टाइम में रेगुलेशन रिफॉर्म देखेंगे, ओके आप आने वाले टाइम में स्टैम्प ड्यूटी रिफॉर्म देखेंगे। ये लैंड रिफॉर्म क्यों जरूरत है कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड एलोकेट कर दी है, राइट जहां पे हम लोअर रेट पे हम लैंड दे पाए, राइट जहां पे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ पाए। ये नेक्स्ट टारगेट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। तो मैं इस पे वॉच कर रहा हूँ एंड होपफुली हमें इसमें कुछ अच्छी न्यूज मिलेंगी। होपफुली, बिकॉज जैसे आप बता रहे हैं, आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स डीरेगुलराइजेशन, जहाँ की लॉट ऑफ रेगुलरिटीज जहाँ आम आदमी फंस जाता है, उससे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है निकालने की। Indeed. आई ऑल्सो फील कि the PMO और the प्राइम मिनिस्टर और द टॉप लेवल ऑफिशियल्स, इनके पास बहुत सारी चीज़ें पहुंचने में भी टाइम लगता होगा, बिकॉज लॉट ऑफ नॉइज दैट यू हैव टू कट आउट एज अ टॉप लेवल पर्सन इन द गवर्नमेंट. You have to take decisions on a very feedback basis, and I think उनको feedback उतना strong मिलता नहीं है जल्द से, या उनको मिल जाता है. नहीं, थोड़ा नितान मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। अब तो फीडबैक सिस्टम बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहा है, इट्स इम्प्रूविंग फर्दर। जब इम्प्रूव कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो करेक्शन आप देख रहे हैं, जो चेंजेज आप देख रहे हैं, अच्छा आप बताइए 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को जीएसटी जनरेशन 2.0 अनाउंसमेंट होगा। आपको मालूम था? मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आपको मालूम था? हमें किसी को ये एस्टिमेशन नहीं था, राइट? लेकिन गवर्नमेंट पीछे से वर्क कर रही है, यानी गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि हम वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की बात को आगे बढ़ाएं और लोकल कंजम्पशन, कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबिलिटी। आप एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, सीमेंट फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, राइट. हाउसिंग फॉर ऑल की जब हम बात करते हैं तो सीमेंट एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, उस पे 28% का जीएसटी रेट लगता था, 28% लगता था, जिसको इन्हें डाउन कर दिया 18% पे, राइट. यानी अब हाउसिंग फॉर ऑल जो इम्पोर्टेंट है सबके लिए, जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है, तो अब हाउसिंग सेक्टर में अफोर्डेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट. कंज्यूमर जो आज की डेट में अपनी बेसिक नीड आइटम खरीदता था, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दूं, 12 लाख रुपए तक आपका इनकम टैक्स नहीं लगता, राइट. तो मान लीजिए एक बंदे के 1 लाख रुपए की इनकम है, करेक्ट. और वो 50,000 रुपए सिर्फ अपने रोजमर्रा की खर्चे के लिए यूज करता है, दूध खरीदता है, चावल खरीदता है, वेजिटेबल्स खरीदता है, ये Correct. चीजें खरीदता है, करेक्ट. जिसके रेट आज की डेट में गवर्नमेंट ने नील कर दिए, राइट. यानी उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, 5% से नील पे लेके आ गए। करेक्ट. तो मान लीजिए 50,000 रुपए का ऐसा आइटम था उसका, जिसपे वो ये सारे आइटम, ग्रोसरीज आइटम, एसेंशियल आइटम, नील आइटम खरीदता था। करेक्ट. अब उस पे जब जीएसटी नहीं लगेगा तो उस पे 5% की उसकी सेविंग हो गई, या मान लीजिए जो 12 से 5 पे आ गया उसकी 7% की सेविंग हो गई। करेक्ट. तो यानी ये 50,000 के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग वो भी आएगी। तो मैं 50,000 पे मान लो 5% की सेविंग भी लेके आऊं तो 2,500 रुपीज की सेविंग आ गई करेक्ट. पर मंथ की। करेक्ट. यानी एक तो 1 लाख रुपए पे आपको इनकम टैक्स नहीं देंगे, यहाँ पे जीएसटी की भी सेविंग आ गई, तो कंज्यूमर के हाथ में आपने ज्यादा से ज्यादा पैसा छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। Correct. अब कंज्यूमर उस पैसे का करेगा क्या? वो Correct. कुछ और खरीदेगा और उसको यूज करेगा। Correct. तो हमारी ओवरऑल जीडीपी में जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, राइट. डिमांड बढ़ेगी, और जब ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो सप्लाई चेन में जीडीपी का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। यानी आपका 6.5% जो जीडीपी की हम बात कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में और ऊपर की ओर जाएगी, और रिसेंट लास्ट क्वार्टर में 7.8% जीडीपी ग्रोथ हुआ है, राइट. 7.8% जीडीपी ग्रोथ। तो मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि जो अफोर्डेबिलिटी है वो यहाँ से बढ़ने वाली है।
चीजें इम्प्रूव होने वाली हैं। तो ये जो फीडबैक सिस्टम जहाँ पे आपने क्वेश्चन रेज किया था, हाँ कई बार लगता है कि अगर कोई चीज चेंज ना आए तो हमें लगता है मेरी आवाज कोई सुन नहीं रहा। आप घर पे जाओ, छोटा बच्चा होता है, उसे भूख लगी होती है, वो बहुत जो पहले रोना चालू, धीमे धीमे रोना चालू करता है कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है, राइट। राइट। तो मम्मा नहीं सुन रही है तो वो बच्चा क्या करता है, अपनी साउंड बढ़ा देता है। अब अभी भी मम्मा नहीं सुन रही है, फिर बच्चा साउंड बढ़ा देता है। तो ये Correct. फीडबैक सिस्टम कुछ एक सिनेरियो पे वर्क करता है Correct. कि कई बार आपको दर्द हो रहा है, लेकिन आप रो ही नहीं रहे, तो मुझे लगता नहीं ये ऐसी ऐसी चिलपिल कर रहा है, ये ऐसा कुछ है नहीं है। Correct. लेकिन जब आप चिल्लाना चालू करते हैं कि नहीं अब तो रहा ही नहीं जाएगा मेरे से, तो मम्मा तो सुन रही है सबकी आवाज। Correct. बस वो टाइमिंग का फैक्टर है, जब मम्मा सुन लेती है तो आप बोलते हो हाँ मम्मा सुन लेती है। तो आप ये मान के चलो निताज सुन तो लेती है, टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है। Correct. That was a great anecdote to explain कि हाँ the feedback system is working and the country is progressing towards a progressive tax system जो आज हम देखने वाले हैं 22 सितंबर से। अब मैं चाहूँगा कि आप कॉन्वर्सेशन वहीं लेके जाए। What do you feel is important in today's system in the government that जिसके बारे में कंज्यूमर को बात करनी चाहिए, और कोई ऐसी एक चीज जो जीएसटी में अभी भी आपको लगता है इज लैकिंग और वी कैन डू मच बेटर देयर, एनीथिंग? तो पहले मैं जीएसटी की लैकिंग बता दूं। अच्छा। मैं इतनी अप्रिशिएशन की है, आप बोलोगे मैंने कोई लैकिंग वाला पार्ट नहीं बताया। अगर गवर्नमेंट मुझे सुन रही है तो जीएसटी में जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं राइट। तो वो सीमलेस होनी चाहिए। ओके। आप उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। जीएसटी लॉ में एक प्रोविजन है 17 सबसेक्शन 5। अब मैं आम दर्शकों को नहीं बोलूंगा कि आप इस सेक्शन को जाके देखिए, पर एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि मान लीजिए आप अपने ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ओके, और इसी ऑफिस से आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, राइट तो इस कंस्ट्रक्शन को करने वाला वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर आएगा, राइट। कंस्ट्रक्ट करेगा, जीएसटी आपको चार्ज करेगा, तो आपको क्रेडिट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ नित्यांत आपसे। मैं अगर अपना ऑफिस कंस्ट्रक्ट करा रहा हूँ तो उस जीएसटी कॉन्ट्रैक्टर ने जीएसटी चार्ज किया आपको, और ये ऑफिस आपके बिजनेस के लिए है, तो आपको क्रेडिट चाहिए या नहीं चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए तो आइडियली मुझे क्रेडिट चाहिए, लेकिन जीएसटी लॉ में नहीं मिलती। जीएसटी लॉ में इन्हें बांट कर रखा है कि आप कोई क्रेडिट नहीं देंगे। अब मैं एक और एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कई बार आप मार्केट में जाते हैं ना, एक के साथ एक फ्री, आज की डेट में ट्रेंड है, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 1 फ्री। ऑफ कोर्स। तो फ्री वाला प्रोडक्ट फ्री है क्या? फ्री कुछ नहीं होता, ये तो मार्केट एक्यूमेंट होते हैं बेचने के, राइट, कि भाई मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया, एक के साथ एक फ्री या 50% डिस्काउंट दे दिया, राइट। तो कई बार फ्री जैसे ही हम करते हैं ना, जीएसटी लॉ में एक प्रोविजन है फ्री सैंपल, फ्री गिफ्ट, हम जीएसटी क्रेडिट नहीं देंगे। अरे फ्री गिफ्ट कोई नहीं देता। अगर कोई बिजनेसमैन कुछ बांट रहा है गिफ्ट के तौर पे, उसका पर्पज ये है कि कंज्यूमर उसका टेस्ट करे और टेस्ट करके उस प्रोडक्ट को आगे से बाई करे। हम पुराने जमाने में देखते थे, हमारे यहाँ ब्रेड और बिस्किट नहीं बिकते थे। हमारे पापा बताते थे ये ब्रेड एंड बिस्किट जितनी ब्रिटिश कंपनी थी क्या करती थी, मार्केट में आती थी और चाय के साथ बिस्किट फ्री में देती थी। बिस्किट फ्री होते थे, क्यों होते थे मालूम है? हाँ, ब्रेड फ्री, नितांत यही था। और वो ब्रेड और बिस्किट हम लोग खाते थे तो उनको आदत लग गई और ब्रेड एंड बिस्किट खाना हमने चालू कर दिया। बना हमारे टाइम में ना, जो लोग थे जिस टाइम पे, हम जब 1960 1950 की जब बात करेंगे तो हमारी रूटीन अलग होती थी। जो हम आज की डेट में एडवांस हो गए हैं, हम थोड़े मॉडर्नाइज हो गए, हमने वर्ड यूज कर लिया मॉडर्नाइज, एडवांस्ड, लेकिन हमारे खाने में न्यूट्रिशन होता था। अब हमारे खाने में न्यूट्रिशन कम होते जा रहा है और वो सारे आइटम बढ़ते जा रहे हैं जहाँ कैलोरी ऐड होती है, जहाँ पे हम अपने आप पुटअप करते हैं। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब चीजें हम बिजनेस के अंदर गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट करने का पर्पज कभी ये नहीं होता कि मैं फ्री में लंगर लगा रहा हूँ। मैं तो उस कंज्यूमर को दे रहा हूँ कि भाई तू टेस्ट कर। कई बार आप जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, एक छोटी सी एक फ्रेग्रेंस की शीशी दे दी जाती है। पर्पज क्या है कि आप उस फ्रेग्रेंस को यूज करो और आगे परचेज करो, राइट, एग्जैक्टली। पर जीएसटी लॉ में अगर फ्री सैंपल है तो उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर आपने कहा जीएसटी लॉ में सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट होगा, मैं कह रहा हूं, अगर मुझे गवर्नमेंट के साथी अगर देख रहे हैं, अगर मेरी बात फिर से आप ही की तरह फीडबैक पीएमओ ऑफिस तक जा रहा है, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा आप जीएसटी लॉ को सिंपल रखिए ना। मैं 100 रुपए का परचेज करूंगा,
18% दूंगा तो मुझे पूरे 18 रुपए की क्रेडिट मिल जाए। अब इसमें आप बोलेंगे इस टुकड़े की नहीं दूंगा, उस टुकड़े की नहीं दूंगा, तो फिर वो सीमलेस वाली बात कहाँ रही? स्क्रूटिनी हो रही है। फिर तो आपने इसको कम कर दिया ना। कर दिया। और जैसे क्रेडिट को कम, आप जस्ट इमेजिन कीजिए ना, बिना ऑफिस के आप कोई बिजनेस कर लोगे क्या? और बिना ऑफिस के हम कुछ कर पाएंगे क्या? हाँ, Right. आपका कॉन्सेप्ट यह कि इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गया इसलिए हम क्रेडिट नहीं देंगे, लेकिन बट वो आपके बिजनेस सेंटिमेंट से काम नहीं कर रहा। राइट। तो आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो मेरा टेक होगा कि बिजनेस को सिंपल करना है तो 2 थैले होने चाहिए। मैं जो परचेज करके लाऊं उसकी पूरी क्रेडिट मिल जाए, और जो बेचूं उस पे जितना भी टैक्स बने उससे मैं क्रेडिट से पे करूं, और जितना वैल्यू एडिशन है कैश से पे कर दूं। Right. सिंप्लिसिटी इसका नाम है, जिसको हम गुड एंड सिंपल टैक्स कहेंगे। तो जीएसटी में एक ऐसी चीज है जिसको मैं अभी भी चाहता हूं, 9 साल हो गए हैं, जैन 2 रिफॉर्म भी आ गया, बट ये वाला पार्ट होना चाहिए। सो मे बी अगले बजट में, क्योंकि लॉ में चेंज करने पड़ेंगे, सो मे बी 26 में 1 फरवरी को जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करती हैं, राइट। तब हो सकता है शायद इस बात को देखें। और हमारा आज का सजेशन क्या मालूम, और आपने जो ये सजेशन लिया है कल वहां तक पहुंचे, और मैं तो चाहूंगा हमारी आवाज जो लोग देख भी रहे हैं वो भी इस बात पे ऐड करें, कमेंट डालें, और इस बात को आगे बढ़ाएं कि हाँ, जीएसटी लॉ का मतलब है मुझे पूरी क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मिलनी चाहिए। True that. One thing always I wonder about is why is alcohol and fuel not included under the GST regime? Nintan, basically alcoholic liquor for human consumption, Yes. it is state subject matter. So state is being empowered to levy tax. Okay. So that is the reason it was a broad decision, and GST Council, Center and State decided accordingly. So alcoholic liquor will not come into GST at all. Petroleum is being kept outside. There are 5 petroleum products: petrol, crude petrol, natural gas, aviation turbine fuel. So these items are out of GST as on date, but there's a provision within the GST law that they can bring in within the GST. But for that, center and all the state need to agree for the same. Okay. That is what it is being kept open. So to my mind, अभी इसको क्यों नहीं लाया गया, इसकी वजह ये थी कि आज की डेट में ये जीएसटी से बाहर है, तो जो स्टेट की जो रेवेन्यू कलेक्शन है इन 2 आइटम से बहुत आते हैं। Right. तो उनका टेक ये था कि हमारे जो कलेक्शन है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो उनने शुरू में ये रखा कि अगर आप जीएसटी ला रहे हैं तो इन दोनों को आपको बाहर रखना पड़ेगा, जिससे हमारे स्टेट के कलेक्शन में कभी इम्पैक्ट ना आए। अच्छा जी। तो इस बात को माइंड में रखते हुए दैट इज द कॉल टेकन। अल्कोहलिक लीकर तो इन्हें प्रोविजन में ही डाला हुआ है कि कभी जीएसटी में नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं वो जीएसटी में आ सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट उसके लिए एज आई सेड, सेंटर और स्टेट दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कब ये वो ला सकते हैं। तो इन गिवन सेट पर्पज यही था कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। स्टेट ने यही सोचा, इसीलिए उन्होंने एग्री नहीं किया, and that is how mutually decided by center and state both together. What is your take on this? My take, petrol and diesel, petroleum products must come in GST, otherwise creating cascading, because look at manufacturing sector, service sector, बिना पेट्रोल डीजल के नहीं चल सकता। Right. अगर मैं उस पे नॉन जीएसटी वाले पे करूंगा टैक्सेस तो उसकी जीएसटी में क्रेडिट नहीं मिलती, तो कैस्केडिंग हो रहा है आज की डेट में। Right. अब एक तरफ आपका कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो स्टेट देख रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैस्केडिंग हो रही है। Right. तो ये दोनों चीजें सिंक नहीं हो रही। तो मेरा टेक यह है कि आने वाले टाइम में इनको पेट्रोल, डीजल, इन सबको जीएसटी में जरूर लाना चाहिए। दैट इज माय एडवाइस। आज की डेट में पेट्रोल डीजल के ऊपर सेंट्रल टैक्सेस लगा रहा है, स्टेट अपनी स्टेट टैक्सेस लगा रहा है, जिसकी जीएसटी में क्रेडिट नहीं मिलती। कैस्केडिंग करके आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कैस्केडिंग को आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। वही थीम था जीएसटी का कि कैस्केडिंग नहीं होना चाहिए। अगर कैस्केडिंग होगी तो फिर जीएसटी की थीम हम कहाँ पिच कर पाएंगे। जीएसटी में अगर हम चाहते हैं कैस्केडिंग खत्म हो तो एटलीस्ट पेट्रोल डीजल पे दोनों सेंटर एंड ऑल जितने भी स्टेट हैं जीएसटी काउंसिल में बैठे और डिसाइड करें। दैट वुड बी वे फॉरवर्ड एंड दैट विल सिंप्लीफाई द जीएसटी। ओके। एंड अल्कोहल कभी अल्कोहल को तो इन्हें प्रिंसिपली माइंडसेट और पूरा
मुझे नहीं लगता कि अल्कोहलिक लीकर कभी जीएसटी में आएगा. सो उस पे अभी आप एक्सपेक्ट ना करें. आप पेट्रोल डीजल की बात करें, दैट इज मोर एडवाइजेबल वन. Because it is related to business, and I think a lot of Yes, correct. things are working Yes, through correct. this. Yes, correct. And I think businesses need input. Yeah. क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है अल्कोहल, फ्यूल पे तो बहुत एक्सपेंडिचर होता है कोई भी बिजनेस के लिए. So be it manufacturing sector, service sector, trading sector, any sector of GDP, petrol, diesel is the basic need. It need to be included in GST. That would be my take. And I will again request to both center and all the state, they must take a broader call and they must decide for the benefit, and cascading must go away. Right now, any books you would recommend अगर मुझे टैक्सेस समझने हैं in depth, especially the Indian GST system? तो थोड़ा मैं सेल्फिश हो जाऊंगा. हाँ, जब जीएसटी नहीं आया था तो अक्टूबर 15 में राइट मैंने अपनी पहली बुक जीएसटी लॉ की लॉन्च की थी. अक्टूबर 15 में. जीएसटी आया जुलाई 17 में. राइट. तो उसके बाद से अभी 10th एडिशन, यानी हर साल मेरी बुक अपडेट हो रही है. और 9 साल की जीएसटी में 10वीं एडिशन जीएसटी लॉ एंड कमेंट्री मार्केट में है. बहुत अच्छी बुक है, 4 वॉल्यूम में है. और बड़े डिटेल में मैंने इस बुक को लिखा है. बहुत पैशन, बहुत मेहनत की है. निदान इस बुक को लिखने में वो भीतर का पैशन इतना है ना, हमने अपना सब कुछ उस बुक में डाल दिया है. तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बुक बहुत अच्छी है, चैप्टर वाइज है. अगर आप जीएसटी बाकी समझना चाहते हैं, सप्लाई क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, वैल्यूएशन क्या होता है, एडजुडिकेशन कैसे होगा, अपील कैसे होंगी, सारी चीज़ों को मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड करके बड़ा वेल एक्सप्लेन किया है. जिसमें मैंने जजमेंट, जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, उन सारी चीज़ों को कोट किया है. एंड उसके बाद मैंने अपनी कमेंट एंड कमेंट्री भी डाली है. मैंने हर प्रोविजन के ऊपर अपना से मैं क्या चाहता हूँ, लॉ का प्रोविजन क्या कहता है, इंटरप्रिटेशन क्या है, उस सारी चीज़ों को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है. तो मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ, बट अदर राइटर की बुक भी मार्केट में है, तो आप मार्केट में जाएं. देयर आर सो मेनी अदर राइटर आल्सो, बट टू माय माइंड मेरी बुक आपको जरूर हेल्प करेगी. अगर आप बेसिक से एडवांस की ओर जीएसटी सीखना चाहते हैं, माय बुक इज स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. सो आपको सारी चीजें चैप्टर वाइज इजी लेमन लैंग्वेज में समझाएगी. जैसा आज हमने कम्युनिकेशन किया है, एकदम सिंपल उसी कम्युनिकेशन में आपको चीजें मिलेंगी. So that is what that bus is. I would recommend all my viewers to please आप बिमल सर की किताब जरूर पढ़ें. Thank you very much. And I think जैसे आज एक्सप्लेन उन्होंने किया जीएसटी हमें in very simple layman language जो मुझे समझ आएगी, I think आप सबको भी समझ आएगी. So I think that is a much recommended book. And I think it's a great book. I'm sure it's a great book. मैं भी खुद पढ़ूंगा because I need to learn more about GST. I think I lack the knowledge in that subject. No, but I can tell you, Nitant, for any subject matter, we are not the master. So after all, you are master in your business. So let me tell you, sometimes मुझे लगता है कि मैं आपका बिजनेस सीख लूँ. हाँ, कई बार बड़ा डिफिकल्ट होता है. हर कोई बंदा अपनी फील्ड में मास्टर होता है, और हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा दूसरे एरिया को भी सीखने की कोशिश करें. बट मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि जीएसटी आपका टॉपिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी यू टुक द करेज. आपने जीएसटी जैन 2.0 के ऊपर ये पॉडकास्ट किया. मुझे तो कई बार लग भी रहा था कि नितांत को अचानक ये जीएसटी इतना अच्छा कैसे लगने लगा. तो मेरे माइंड में था, बट आई एम थैंकिंग टू यू दैट आपने इस पॉडकास्ट को किया, और इसमें आपने वो सारे क्वेश्चन पूछे जो एक किसी भी लेमैन, कोई भी बंदा समझना चाह रहा होगा, जिसको लग रहा होगा कि जीएसटी 2.0 है क्या, रेट का क्या मतलब है, आईटीसी का क्या मतलब है, कंज्यूमर के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, सप्लाई चेन में कैसे चीजें करेक्ट होंगी. These were really, I must compliment to you that you did a lot of, hard work and prepared well, and that is how today you're grilling me. नहीं, grilling की बात नहीं है. I think it is also because GST is a subject matter for every citizen. Yes. I don't think it is limited to someone who is into taxation and GST या कोई business operate कर रहा है. I think even a general consumer should be very well educated about GST. And वही दिमाग में मेरे था कि I felt a lot of people around would also have a lot of questions in their head
जो आज शायद GST 2.0 के बारे में सुन रहे हैं, तो दैट वाज द ओनली पर्पस टू बी हियर एंड टू हैव यू हियर इज बिकॉज जो भी GST के बारे में चीज़ें समझना चाह रहा है, जो इंसान उसके डेप्थ्स को समझना चाह रहा है, वो थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन ले सके. आई थिंक यू कैन नेवर बी, एज यू सेड, you can never know every subject in all details. I think you're always a learner in every subject. Mastery is a long term thing, but at least kuch learning agar ho to it helps in other fields. Indeed, yes. Any costing, pricing Yes. cannot be complete. Without- Basic GST. Yes. Basic GST. Of course. Anyway, this is not the end of the podcast though. We are moving towards the end, but we have a few more things in mind and we'll talk about it. So I was, मैं देख रहा था, I was watching this podcast of Nikhil Kamath recently, and they were also talking about taxation in India. That's where they were talking about a lot of taxations in other countries. I think the Asia Pacific countries and taxation in the US and all these countries, जहाँ उन्होंने mention किया कि these countries have grown a lot. मतलब एक टाइम पे आई थिंक जापान, कोरिया, ऑल दिस कंट्रीज के GDP ने भी 8 to 9% पे ग्रोथ ली है. एंड अ लॉट ऑफ इट वाज टू प्ले विद देयर टैक्सेशन सिस्टम दैट वाज सिंप्लीफाइड अ लॉट बिफोर अस. मतलब हमने जो स्टेप आज लिया है या आज के टाइम में ले रहे हैं, उन्होंने वो स्टेप बहुत साल पहले ले लिए थे एंड उसका रिजल्ट शायद उन्होंने थोड़ा जल्दी देखा और हम लेट देख रहे हैं. सो what is your take on this? You're right to a certain extent. Indeed, yes. See, taxation policy plays very important role in any GDP. Right. देखिए, आपने कभी देखा होगा एक फॉर्मल इकोनॉमी होती है, एक इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है. Right. जहाँ रेट ज्यादा होते हैं वहाँ चोरियां ज्यादा होती हैं. Right. वहाँ कंज्यूमर का बिहेवियर भी आपने देखा होगा. जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं? बिना बिल के कितने लोगे? बिना बिल के क्यों लोग कहते हैं जैसे GST नहीं लगेगा. Right. तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है और ये तभी होती है जब रेट हायर होते हैं. अगर रेट आपके विद इन अफोर्डेबल लिमिट में आ जाए तो आप बिल के साथ ही लेना चाहेंगे. बिल्कुल. तो क्वाइट ऑब्वियस है. मैंने देखा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो GST हो या प्री GST की बात करूं मैं, जब रेट नीचे की ओर आते हैं तो फॉर्मल इकोनॉमी की ओर हम आगे बढ़ते हैं. कंज्यूमर का बिहेवियर भी बिल लेने की ओर आगे बढ़ता है. अब कोई प्रोडक्ट पहले मान लीजिए 18 का आता था, आज 5 पे आएगा, या 12 का आता था 5 पे आएगा, तो आप भी कहेंगे नहीं भैया बिल दो, मुझे बिल दो. और एक बिल से कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं हम नेशन के लिए कि उस बिल के जरिए GST प्रॉपर्ली गवर्नमेंट अकाउंट में गया. Right. जब आपने बिल नहीं लिया तो उस सप्लाई चेन में कितने लोग चोरी कर रहे हैं टैक्स की. Right. तो हम नेशन को कहाँ आगे लेके जा रहे हैं. Right. तो एक रेट कम करने का, यानी टैक्सेशन की पॉलिसी का मेरे GDP में कितना योगदान है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. True. यानी हम इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल में जाएंगे, कॉम्प्लायंसेस बढ़ जाते हैं. Right. फिर लोगों के अंदर आता है कि अब तो GST का रेट 5% है, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो GST में रजिस्ट्रेशन लेता हूँ. नितांत, आप सरप्राइज करोगे, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, कुल 1.5 करोड़, 1,50,00,000 सिर्फ GST में रजिस्टर्ड पर्सन है. यानी आप सोचो पूरे इंडिया में 1,50,00,000 सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन, जिसमें कॉम्पोजिशन डीलर भी है. तो आप समझने की कोशिश करो, आज की डेट में मेरी जो सप्लाई चेन की हॉराइजन होनी चाहिए वो बहुत लिमिटेड है. इस लिमिटेड हॉराइजन में आप कलेक्शन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप कहना चाह रहे हैं सिर्फ 1.5 करोड़ बिजनेसेस ही रजिस्टर्ड. हाँ. एंड रनिंग बिजनेसेस इससे ऑब्वियसली ज्यादा होंगे. आप देख लो ना, आप चांदनी चौक, दिल्ली में हो, आप हाँ. चांदनी चौक में चले जाओ, एक जो कचौड़ी वाला होगा ना, हाँ. आपने अभी एक कर्नाटका में केस सुना होगा और खुल के आया भी था. एक पुचका वाला, आजकल आप किसी भी पुचके वाले के पास जाइए, वो सराउंडिंग लगा के सब खड़े होके खा रहे होते हैं. राइट. वो पुचका वाला नहीं करते हुए भी ना उसकी 70 लाख 80 लाख रुपए की ईयरली रेवेन्यू है. राइट. लेकिन वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है. Right. वो कभी ITR नहीं भरता. Right. अभी गवर्नमेंट ने कह दिया कि UPI के जरिए पेमेंट लो,
तो यूपीआई से गवर्नमेंट को मालूम पड़ गया कि इनके पास तो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की रेवेन्यू आ रही है, राइट, लेकिन ना ये इनकम टैक्स देते हैं ना ये जीएसटी देते हैं। सिर्फ 1-2 लोगों की कहानी नहीं है, ऐसे कई लोगों की कहानी है। राइट, लेकिन वो इस टैक्सेशन के रडार में इसलिए नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह ये है उनको लगता है कि कल हम जीएसटी में आ गए या इनकम टैक्स में हम आ गए तो कल हमारे कॉम्प्लायंसेस बढ़ जाएंगे, हम छोटा सा काम करें या ये करें। तो जीएसटी में भी कॉम्पोजिशन डीलर बोल के कॉन्सेप्ट होता है, यानी 1.5 करोड़ तक की लिमिट होती है जिसमें आप कॉम्पोजिशन डीलर का रजिस्ट्रेशन ले ले और आपका एक लोअर बड़ा 1% का जीएसटी लगेगा, तो कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है। तो आपका क्वेश्चन जहाँ से उठा कि भाई जीडीपी विथ टैक्सेशन कॉम्प्लायंसेस, टैक्सेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो मैंने आपको यही कहा कि जब आप रेट कम करते हैं तो ओवरऑल जो मेरा बिहेवियर है एक बियॉन्सी होती है। क्या होता है ना, एक हमारे अंदर माइंडसेट बैठा होता है कि रेट ज्यादा है तो मैं दूर रहूं, हम लोग टैक्स आर्बिट्रेज करने लगते हैं, राइट, हमारा कॉम्प्लायंसेस कम हो जाते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर भी बिना बिल के माल लेने का हो जाता है। तो ये जो रेट रिडक्शन हुआ है दैट विल बी गिव ए वे। आप इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख पे ले गए, यानी कोई इनकम टैक्स नहीं, यानी आपने कंज्यूमर के हाथ में 1 लाख रुपए छोड़ दिए, आपने जीएसटी में रेट का रिडक्शन कर दिया, यानी अब आने वाले टाइम में कंज्यूमर का बिहेवियर बदलेगा, कॉम्प्लायंसेस बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा ये बेस जो है जिसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ और मैं सबसे कहना भी चाहता हूँ कि हम लोगों को अगर हम वाकई हमारी लिमिट से क्रॉस कर रहा है तो हमें रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, क्योंकि हमको अल्टीमेटली ऑर्गेनाइज इकोनॉमी की ओर देखना है और अल्टीमेटली अपने जीडीपी को सपोर्ट करना है, राइट, स्टिमुलस देना है। दैट इज व्हाट। राइट, राइट, आई थिंक इट्स वेरी ट्रू। या वन मोर थिंग दैट इज कमिंग टू माय हेड इज स्टॉक मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कैपिटल गेन्स पे क्या जीएसटी में प्रोविजंस आए हैं? Is it- मैं बताऊं, देखिए आप कैपिटल गेन फ्रॉम इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव, ओके, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद जीएसटी। ठीक है, सो पहले हम समझ लेते हैं इनकम टैक्स इज समथिंग डिफरेंट एंड जीएसटी समथिंग डिफरेंट। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सो कैपिटल गेन के ऊपर अगर कुछ आना होगा तो इनकम टैक्स में आएगा। ओके, अब हम समझते हैं शेयर मार्केट में इसका क्या आने वाला है। वाला है, राइट, तो अभी रिसेंट हमने लास्ट 10-15-20 डेज में कई चीजें देखी हैं। यूएस टैरिफ इनिशियली उनने लेवी किया 25%, राइट, देन उनने 25% पेनल्टी लेवी कर दी, 50% इफेक्टिवली फ्रॉम 27 ऑफ अगस्त 2025। एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में आ गया, नेगेटिव एक इम्पेरेटिव मार्केट में फ्लो कर गया कि मेरे जितने भी एक्सपोर्टर है जो यूएस मार्केट में माल भेज रहे हैं वहां उनके लिए एक्सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। Right. जितने भी इंडियन ओरिजिन गुड्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे वहां पे। राइट, तो हमने इमीडिएटली मार्केट में देखा 3000 पॉइंट का करेक्शन आ गया 4-5 दिन के अंदर। उस दौरान हमने देखा था करेक्शन आ गया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे जब ये जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन 2.0 जो हमने अनाउंस हुआ और देखा रेट रैशनलाइजेशन, उसने इस चीजों को कहीं कुछ हद तक कवर अप किया। क्या होगा, अब जितना भी लॉस मुझे जीडीपी में बिकॉज ऑफ थ्रेट फ्रॉम यूएस टैरिफ हुआ, वो मेरा अब लोकल डिमांड, मेरी लोकल कंजम्पशन बढ़ेगी, लोकल डिमांड बढ़ेगी, और लोकल जब डिमांड बढ़ेगी तो कलेक्शन बढ़ेगा, कलेक्शन बढ़ेगा तो मेरी जीडीपी में एडअप करेगा। यानी मैं ये देख रहा था यूएस टैरिफ की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा था वो अराउंड 0.5% आ रहा था टू आवर जीडीपी, और आई एम वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव अबाउट कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेट जिस दिन हम बैठ के बात कर रहे हैं अब तो फिर मैंने सुना कि ट्रम्प साहब ने बहुत पॉजिटिव बातें की हैं। अगेन ही हैज अप्रिशिएटेड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी रेसिप्रोकेट करते हुए उनके लिए अप्रिशिएशन किया है। तो हो सकता है कि जो टैरिफ की बात चल रही है वो फिर से एक लेवल ऑफ नेगोशिएशन पे आ जाए, एंड फिर मैं सुन रहा हूँ कि नेगोशिएशन लेवल पे बातचीत चालू हो गई है। राइट, तो आने वाले टाइम में हम दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, यूएस एंड इंडिया। Right. एंड माय टेक ऑन द मैटर इज व्हेन वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर वी शुड मिनिमाइज आवर डिफरेंसेस। Right. जब हम दोस्त होते हैं ना तो हम छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करते। ठीक है, अगर आपको कोई कंप्लेन है मेरे अगेंस्ट में, ऑलवेज वी कैन सिट डाउन एंड डिस्कस, राइट। वी कांट से दैट नहीं तो कल से मेरे घर नहीं आएगा, नहीं कल से तेरे यहाँ ये नहीं होगा। तो वैसे हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो हमने डेवलप 25 साल की दोस्ती, इंडिया और यूएस की, भारत और यूएस की इतनी अच्छी दोस्ती, Right. जस्ट हम रशियन ऑयल के लिए Right. रशियन ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी हमने यूएस की तरफ से ये देखा कि चाइना इज द बिगेस्ट बायर,
राइट चाइना के अगेंस्ट में आप टैरिफ थ्रेट नहीं लगा रहे, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट में लगा रहे हो, इंडिया को आप कंप्लेन किए जा रहे हो। राइट अरे भैया, जो दोस्त हो, जो साथी हो ना, तो उसके साथ बैठ के कंधे पे हाथ रख के बात करनी पड़ती है। अब लग रहा है कि हाँ, ट्रम्प साहब ने थोड़ी सी गियर को चेंज किया है। इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रिशिएटेड एंड दे आर कमिंग टुगेदर। ऑफ कोर्स, हम जिस वर्ल्ड इकोनॉमी में आज हैं, भारत जिस वर्ल्ड इकोनॉमी में है, हम एक लीडिंग पोजीशन को एंजॉय करते हैं। एससीओ समिट में आपने क्या देखा? चाइना, रसिया के साथ भारत में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की पोजीशनिंग आपने देखी। सो इंडिया इज प्लेइंग ए बैलेंसिंग रोल। वो ये भी कर रही है कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ भी बैलेंसिंग रहे, इधर हमारे एशियन कंट्रीज में विद रसिया, यहाँ भी हमारी बैलेंसिंग रहे। हम रसिया से ऑयल क्यों इंपोर्ट करते हैं? हमारी आज नीड है। 140 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है, मुझे पेट्रोल लेके उनको देना है जो मेरी कंट्री में नहीं है, तो क्वाइट ऑब्वियस है जो मुझे चिपर प्राइस पे देगा मैं उसी से परचेज करूंगा। भाई मैंने ये फिर सुना कि भाई हम यहाँ रिफाइनिंग करके हायर प्राइस पे सेल करते हैं। राइट ये भी हमारे ऊपर ब्लेमिंग डाला गया। तो मेरा टेक ये था कि भाई अगर हम रिफाइनिंग करके आपको बेच रहे हैं और वो भी प्राइसिंग में वर्ल्ड वाइड चिपर है, तो आपको तो अप्रिसिएशन करना चाहिए। करेक्ट राइट। सो हम अपने एफिशिएंसी को लेवरेज कर रहे हैं। करेक्ट हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेवरेज कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे यूएस में, देखिए आज यूएस को अगर मैं देखूं, आई ऑलवेज फील लाइक दे आर मोर मैच्योर्ड, they are strategic partner and they call them advanced country, right? Being advanced, being big brother, you must really realize the need of 140 crore population in India. हमको उन्हें फीड करना है, उनको आगे लेके जाना है। आज एग्रीकल्चर फार्मर जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना है, मैं उनकी कॉस्ट पे मैं उनकी बाहर की बात नहीं मानूंगा ना। तो हमें कहीं ना कहीं अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। कहीं नितांत ने मुझसे कुछ कहा और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये झगड़ा कोई सोल्यूशन नहीं होता। क्या होता है कि हम एक दूसरे को अपनी बात समझाएं और समझा के हम उस जगह पे आए जहां पे चीजें बदले। तो फिर से मैं उसी आंसर पे आ जाऊंगा कि जीडीपी और टैक्स एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे को ऐड करता है। तो अब जो अनाउंसमेंट हुए हैं इनकम टैक्स से लेके जीएसटी 2.0 वाले, इससे कंज्यूमर के हाथ में पैसा पहुंचेगा, कंज्यूमर खर्चा करेगा और खर्चा करेगा तो मेरी कंजम्पशन डिमांड बढ़ने वाली है और जीडीपी में जो भी हम डेंट देख रहे थे यूएस टैरिफ की वजह से, वो सारा कॉम्पेंसेट हो जाएगा। ट्रू। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू प्ले इट्स कार्ड्स राइट, बिकॉज अगेन आपने जैसे कहा कि हमें 140 करोड़ लोगों का पेट भरना है, तो वी एज अ नेशन हैव टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स। हम हमेशा दूसरों की जंग नहीं लड़ सकते जो हमने किया अपने हिस्ट्री में। वी कांट डू इट अगेन एंड अगेन। सो वी एग्री दैट in case of Russia and Ukraine, a lot of wrong things are happening, but it is not our war to fight. We have to look after ourselves. Every country is doing that. China is doing that. Russia is doing that. US is doing that. But फिर again, why is India to always play the role of a Bhishma Pitama or being the elder granddad? No, we can't do that. That is not what needs to be done. It's not need for the hour. So I truly believe that India has to take a stance. And रही बात I think Russian oil buy करने की, actually market में हमने सप्लाई चेन को सही रखा बाय करके, वरना ऑयल के प्राइसेस वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा चले जाते। अगर इंडिया एज अ बायर घुस जाता, then you wouldn't have a situation where enough supply भी नहीं होती and there was not enough supply for India to fulfill its demand। 140 करोड़ के तेल की डिमांड आप उस प्राइस पे कैसे फुलफिल करोगे? It is not possible. So I think I'm being very vocal about it because this point has always been in my head कि why always India has to play that role, and US expects India to play a certain role, but when it comes to China, it is a free giveaway, ठीक है? So these two standards won't work, and I think India has done the right thing, stood its ground and not bowed down to any pressure. And I think kudos to the government for that, for not bowing down to any kind of international pressure. तो I also जैसा आपने एग्रीकल्चर की बात की, I know that agriculture is also tax free. I mean, income on agriculture mostly in a lot of part of supply chain, so tax free होता है. I understand India के लिए agriculture बहुत important है, but don't you think वहाँ पे भी थोड़ी regulation की जरूरत है? It is too deregularized.
You are right, Nidant, but to a certain extent, my take is जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, वो खुद इतने एजुकेटेड क्लास नहीं है. ओके. राइट. आप रेगुलेशन की बात करते हैं, रेगुलेशन तभी आएगा जब हम एक सामने वाला बंदा मेरी बात समझ पाएगा. राइट. राइट. और एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है. ऑफ कोर्स. सो हाँ, ठीक है, आपका टेक हो सकता है कि भाई हमें कुछ रेगुलेशन की ज़रूरत है. कई ऐसे भी हैं जो एग्रीकल्चर के नाम पे बहुत अच्छी इनकम करते हैं और उन पे हाँ, टैक्स नहीं ऑफ लगता. कोर्स. टैक्स लगना चाहिए. ऑफ कोर्स. तो ये सब बातें हो रही हैं आज की डेट में. राइट. पर इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए वाकई एक रिवोल्यूशन की ज़रूरत है. Right. इसके लिए बैठने की ज़रूरत है. इसमें हमें बैठ के समझने की ज़रूरत है कि इस सेक्टर में क्या नीड है और क्या एक्सेस है. राइट. जहाँ एक्सेस है उसको ही रेगुलेट करना है ना आपको. बिल्कुल. नीड को तो आपको रेगुलेट करना ही नहीं है. बिल्कुल. तो जहाँ एक्सेस है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए. बट चूंकि बिंग डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे बड़ा एक और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है ना मालूम है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं. राइट. और बिंग चाइना कैपिटलिस्ट, आप कुछ बोल के दिखाइए. ट्रू. तो कई चीजें ऐसी हैं. तो यहाँ पे अगर रेगुलेशन की आप बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ अच्छा स्टेप भी लेंगे तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपको बैठ के क्रिटिसाइज करना चालू कर देंगे. यस, ऑफ कोर्स. चाहे उसके पीछे बेसिस है, रीजन है, कोई नहीं देखेगा. और यहाँ बिंग पॉलिटिकल ड्रिवन चीजें होती हैं. तो मैं किसी पॉलिटिक्स गिमिक्स में नहीं जाना चाहता. राइट. बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हाँ, रेगुलेशन की जरूरत है. पर रेगुलेशन किस तरीके से लाया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ट्रू, इसको ठीक से सोचना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है. अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको स्टडी कर पाए तो रेगुलेशन जरूरी है. इस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की भी बात हुई थी कुछ टाइम पहले. देयर वर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट बिकॉज ऑफ दिस. सो व्हाई डिडंट दैट वर्क आउट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? सी, टू माई माइंड, मैंने कहा ना कि जैसे हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे. राइट. जब ये लगने लगता है मेरे अधिकार छीन लिए जाएंगे तो प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है. ओके. हम समझ नहीं पाते कि जो प्राइवेटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है और हम क्या देना चाहते हैं. तो मैंने इसीलिए कहा कि आपको इस सेक्टर को बड़ा सेलेक्टिव वे में पिक करना पड़ेगा, प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी और इसमें आपको ग्रूमिंग की भी जरूरत है. आपको एजुकेट करना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी. ट्रू. कोई भी चीज अनाउंस करके काम नहीं चलेगा. आपको उनको अपने साथ लेना पड़ेगा. उनके स्टेक होल्डर जितने भी हैं उनके व्यूज क्या है, फीडबैक क्या है, कैसे हम आगे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने पड़ेंगे. फिर आपको अनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी टची इश्यू को सिंपल अनाउंसमेंट करके इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो आई डोंट थिंक दैट इज द राइट अप्रोच. और चूंकि पॉलिटिकल पार्टियां फ्रिक्शन पे काम करती हैं, कई बार चीज़ें अच्छी होती है लेकिन चूंकि हमें अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाना है, तो हमें कई बार थ्रस्ट ऑपोजिशन पार्टी जो होती हैं वो बार बार उसे अपोज करती हैं. तो मैंने फिर आपसे यही कहना है कि जब हम कोई भी चीज़ करने की कोशिश करें तो सेक्टर स्पेसिफिक में आइडेंटिफाई करें कि उस सेक्टर में क्या नीड है, क्या एक्सेस है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या चेक करना है, स्टेक होल्डर्स के व्यूज क्या हैं, फीडबैक क्या है, हमें किस तरीके से करना चाहिए जिससे सब एग्री कर जाए. जैसे घर में कई बार होता है ना, घर में हम किसी एक चीज पर डिसीजन ले रहे होते हैं लेकिन 4 लोग हैं और 1 या 2 लोग सिर्फ डिक्टेट कर दें चीजों को तो 1-2 बार तो बातें चल जाएंगी, लेकिन आपको वहाँ कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए कि हाँ ठीक है, इस चीज को इस तरीके से करते हैं. एक बार कंसेंसस बन जाएगा तो फिर आपके अगेंस्ट में एजिटेशन नहीं होगी और लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे. कुछ इस तरह की स्टडी की जरूरत है. करेक्ट. आई थिंक गवर्नमेंट, आर यू ऑल्सो इम्प्लाइंग और दैट्स योर टेक ऑन इट कि गवर्नमेंट ने जब पिछली बार ये स्टेप लेने की कोशिश की थी, आई थिंक नॉट अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स वर taken into account and उनसे बात नहीं की गई थी या कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं किया गया था. ऐसा था, बट टू व्हाट लेवल, टू व्हाट एक्सटेंट, ये इट इज ऑल सब्जेक्टिव मैटर. Right. If you go to government side, they will say yes, we have done. If you go to opposition side, no, we were not informed. So I'm only saying that whenever you want to bring any big reform, like just look at GST 2.0.
GST Council, 56 GST Council meeting, Right. center and state both sitting together. Right. Center has communicated to all the state Right. why we need rate rationalization, why we need to reduce GST rate. Right. By reducing, there would not be GST revenue impact on you. It must be, presented before them. अगर स्टेट को ये लगने लगे कि रेट रिडक्शन से मेरा रेवेन्यू लॉस होगा, तो कोई स्टेट क्यों मानेगा? बट कुछ ऑपोजिशन स्टेट थे जो इसका विरोध कर रहे थे, पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किसी ने विरोध नहीं किया. सरप्राइजिंग. सबने अनोनिमसली, मतलब सबने एक मत से रेट रैशनलाइजेशन को अप्रूव कर दिया. यानी जितने भी हम डिफरेंसेस की बात कर रहे थे वो पब्लिक डोमेन में सुन रहे हैं हम. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पे ऐसा कुछ नहीं हुआ. यानी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया, अपनी बात उन्हें बताई और क्यों रेट रैशनलाइजेशन की जरूरत है और इससे रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, इस बात को भी उन्होंने कन्वे किया. तो ये बड़ा, इसी तरह से आपको इम्पैक्टफुल चेंजेस लाने पड़ेंगे. जैसे ही आप ये सारी चीजें प्रॉपर प्लानिंग और स्टेप्स के साथ करते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें बड़े आसान तरीके से हो जाती हैं. Right. Just the last few things in my head. I was also reading somewhere about the fact that it was a किसी का एक नजरिया था इस टॉपिक पर कि a lot of East Asian countries like Singapore or China or Japan, their political structure did not give a lot of political freedom to their people, but it gave a lot of economic freedom. Now this in terms it meant कि वहाँ पे इतनी politics में आपकी choice नहीं थी. You were not allowed to vote or you were not allowed to be very vocal about your political thoughts, but आपको economic freedom बहुत मिलता था. आपको गवर्नमेंट से इकोनॉमिक पुश बहुत मिलता था, आपको इन्वेस्टमेंट्स में पुश बहुत मिलता था, आपको कैपिटलिज्म थोड़ा सा और डीपली समझाया जाता था. वाइल इंडिया इन दो स्टेजेस हमने पॉलिटिकल फ्रीडम तो बहुत दे दी लोगों को, बट इकोनॉमिक फ्रीडम आते आते थोड़ा सा वक्त लग गया और अभी भी शायद हम उसी प्रोसेस में हैं जहां हम लोगों को एम्पावर करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक फ्रीडम की तरफ. सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? व्हाट इज योर टेक? It was not political freedom. India, Bharat, as a constitution, it is for the people, by the people, of the people. राइट. हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम being democratic country, see US and India is two largest democratic country. राइट. Being democratic is a proud, राइट. right? And being capitalist जहाँ आपका say ना हो. राइट. So comparison is again not going apple to apple. ट्रू. Of course, it changes into political scenarios. राइट. Like being democratic, you started your version of saying, other person started his version of saying, ट्रू. and that is how this they are confronting and fighting, and things are not coming out in a manner required to be. यस. So looking at the East Asian countries, they are saying that this will be done in this manner. You have no say, you have to follow it. Follow. And but in turn, you are getting economic freedom. You are getting more and more, the things which you have want for yourself. राइट. But that is the way to look at. But you are not having much to say. राइट. But here, you have a lot of things which you can say. If you are not liking anything, you can make comment here. Right. That is the freedom of speech, your fundamental right in India. So look at Bharat has given this opportunity to all Indian citizens. And now coming to economic freedom. Yes, if you look at the past versus now, we are overlapping them. And down the line, it is being estimated that 10, 15 years, down the line, 25 years, till Amritkar, we would be the largest economy. We would be growing faster. We would be surpassing all the countries. Look at China was even far ahead if you look at today. But way forward, we are the way we are progressing. The way हमारी जो ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस रेट पे हम आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद जब हमारा पॉडकास्ट हो रहा होगा तो आपके क्वेश्चन बदल जाएंगे. फिर आप ये कहेंगे कि आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं, अब हम कितने साल तक सस्टेन करेंगे. ट्रू. तो अभी हमारी लड़ाई पहुंचने की है. तो हाँ, थोड़ा हम जरूर पीछे हैं,
लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं, हम सेल्फ सस्टेन्ड हैं. Look at our, Federal Reserve जो हमारे पास है. Right. We are having much better position. Right. Compare all other, countries. आज हमारी democracy with a lot of, protection, defense side पे. Look at kind of vocal for local in defense sector. Right. Look at lot many things we started. We started going to space also. So Bharat is something different as on date. But we are on the path of, progress, growth. So today what you are finding, we are growing, but you are comparing with those who are already at the stage reached, like Right. US, Right. like China. So maybe down the line 5 years, 10 years जब हम पहुंच जाएंगे, तब कंपैरिजन में आप बोलोगे अच्छा अब तो हम पहुंच गए हैं, अब हम कितने साल तक सस्टेन करेंगे. That will be the question. It's a journey. Right. We start from somewhere and it carrying on. Right. So my only say is that हमें चलते रहना है, इसी तरीके से चलना है, अच्छी तरीके से चलना है और सबको साथ लेके चलना है. तभी मैं बार बार कहता हूँ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास. Right. I think we are also a very young democracy. I mean, Indeed. we are comparatively younger to the US, which is Yes. being a 200-year-old democracy. तो हमें वहाँ पहुँचने में भी वक्त लगेगा. We have to take our time. We are not that old of a democracy. So I think we are doing well that way. And our young generation, I must say and compliment, really, we are proud of. We are proud of the way they are taking Bharat. आज आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम बाहर, ऐसे बहुत से बच्चे जो बाहर नहीं जाना चाहते, ऐसे बहुत से बच्चे जो घर में रहना चाहते हैं, ऐसे बहुत से बच्चे जो भारत के लिए काम करना चाहते हैं, Right. ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको सैलरी नहीं चाहिए, वो रिमोट एरियाज में बैठ के काम कर रहे हैं. दे आर ओनली डूइंग सोशल वर्क. Right. सो हर तरह के कंपैरिजन आपको मिलेंगे. तो कंपैरिजन में सिर्फ एक साइड को देखना सही नहीं होता. कई बार हमें ये भी देखना होता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और Right. लीड कर रहे हैं और इनिशिएटिव ले रहे हैं. Right. सो दैट्स द सक्सेस स्टोरी ऑफ भारत. Thank you so much, sir. आपने बहुत मोटिवेट किया. I think मुझे भी and a lot of our audience will obviously be very, very motivated and inspired by your thoughts for India. And I think a lot of good things are about to come. I think a lot of good things will happen because I believe कि अगर आप सोचोगे अच्छा होगा तभी अच्छा होगा. I think we as a nation need to first think that good will happen, believe that good will happen, and then I think our actions will also be in the same direction. I can only say, maybe we are just about to conclude. See, we are at good. Right. We will do good. And rest assured, we would be at best. True. Okay, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Pleasure talking to you. Yeah, you're talking. Yeah, to you. thank you. Thank you so much for watching, guys. अगर इस एपिसोड से आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिला हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपके पास टैक्स स्ट्रक्चर्स को लेकर कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स या क्वेश्चंस है तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and stay tuned for more right here at Built from Scratch.